நம் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிக்கலாம். हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें। இந்த மாசத்தின் முதல் ஓய்வு நாள்ல தேவ சமூகத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். इस महीने के हम पहला संडे हम आए हैं। கடந்த 8 மாசம் முழுவதுமாக கர்த்தர் நம்மளை அவருடைய தோளில சுமந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டு வந்தார். परमेश्वर ने अपने कंधों पर उठाकर हमें लेकर आया है। கடந்த 8 மாசங்களும் पिछले 8 महीना भी நம்புவதற்கு இந்த உலகத்துல நமக்கு யாரும் இல்லை. हमें भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। நாம் யார் மீதும் நம்பிக்கை வைக்க முடியாத ஒரு காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, वैसा इस दुनिया में जी रहे थे। ஆனால் நம்பிக்கை வைப்பதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னார். लेकिन भरोसा रखने वाला एक मनुष्य है तो ஆண்டவராகிய கர்த்தர் மாத்திரமே. केवल वही परमेश्वर है। இந்த 9வது மாசத்துல इस 9वां महीने में நாம் அவரை நம்புவோம். हम उसी पर भरोसा அவர் रखें। மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை வைப்போம். हमारा भरोसा उसी के पास रखें। அவர் மேல நம்ம நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது हम अगर उस पे भरोसा रखते हैं இந்த समय மாசம் முழுவதுமாக ये महीना पूरा அவர் நம்மளை காப்பதற்கு, वो हमें बचाने के அவர் लिए, நம்மளை போஷிப்பதற்கு, वो हमें खिलाने के அவர் लिए, எல்லாவற்றை காரியங்களிலும் நம்மளை வழிநடத்துவதற்கு हमें सब कार्यों में हमें मार्ग அவர் चलाने के लिए போதுமானவராக காணப்படுகிறார். हमें वो बहुत काफी है। நம்ம இப்பொழுது ஜெபத்துக்குள்ளா நம்ம கடந்து செல்லுவோம். अभी हम प्रार्थना की ओर जाएं। உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन நீங்க में நம்பிக்கை இல்லாத நிலைமையில வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். शायद आप भरोसे के बिना आप जी सकते இனிமே हैं। நான் யாரை நம்ப? मैं अब किस पे भरोसा करूं? மனுஷரை நம்பி பார்த்தேன், मनुष्य के ऊपर भरोसा करके ஆனால் देखा, அவர்கள் என் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி விட்டார்கள். लेकिन वो लोग ने मेरा विश्वासघात किया। இந்த மாசத்துல लेकिन इस महीना में நம்புவதற்கு मुझे भरोसा रखने के ஒருவர் लिए மாத்திரம் இருக்கிறார். केवल एक ही व्यक्ति நம்ம है, ஆண்டவராகிய கர்த்தர் மாத்திரமே. केवल हमारा परमेश्वर यीशु நம்முடைய है। பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், हमारा मार्ग सब अंधकार से भरा रहेगा तो வாழ்க்கை भी, முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், अगर हमारा जिंदगी अंत हो गया और कोई जिंदगी नहीं என்னை समझे तो, தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் अगर मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं हुआ, நாம் சொல்லுவோம், हम कहेंगे நம்புவேன், मैं भरोसा என் இயேசு रखूंगा, ஒருவரே, मैं भरोसा यीशु पर रखूंगा, நம்புவேன், मैं भरोसा என் இயேசு रखूंगा ஒருவரே. केवल यीशु நாம் पर। அப்படியாக ஜெபத்துள்ள கடந்து ऐसा செல்லுவோம். हम जो प्रार्थना की तरफ हम जाएं। நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு
ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. 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 இந்த நல்ல வேளைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं இந்த प्रभु। ஓய்வு நாள் காலை வேளை நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் इस विश्राम दिन हम सुबह के समय आपके पास आए हैं। ஆண்டவரே. இந்த மாசத்தின் முதல் ஓய்வு நாள் ஆண்டவரே. इस विश्राम दिन के इस महीने के पहला संडे के நீர் दिन இதுவரைக்குமாக செய்ததான எல்லா நன்மைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आपने हम पर किया हुआ हर एक भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते நீங்கள் हैं। பாராட்டின கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி आपने ஆண்டவரே. हम पर रखा हुआ उस दया के लिए धन्यवाद। நாங்கள் உண்மையே நாங்கள் நம்பி வந்திருக்கிறோம். केवल आप पर ही हम भरोसा रखे हैं। உண்மையே நம்பி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். केवल आपको पर ही भरोसा करके हम जी रहे இந்த हैं। ஆராதனை வேளையில इस आराधना के समय में ஒவ்வொரு பகுதியிலும் हर एक भाग में உம்முடைய பிரசன்னத்தினால आपकी प्रसन्नता உம்முடைய से, மகிமையினால आपकी महिमा से ஆண்டவரே எங்களை நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். हमें आप भर दीजिए। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பகுதியில हर एक भागों में உம்முடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். आपकी सुरक्षा रहे। எங்களை நீ பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आप हमें पवित्र कीजिए। பாடல் பகுதிகளில गीतों के भागों में, வசன பகுதிகளில वचन के भागों में, ஆராதனை வேளைகளில आराधना के समय எங்களோடு में இடைபடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आप हमारे साथ परमेश्वर बातें कीजिए। எல்லா தடைகளை மாற்றுங்க. सारी रुकावट को दूर இந்த कीजिए। இடத்தை சுற்றிலுமாக इस जगह पूरा பரிசுத்த ஆவியானவர் வேலையெடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा हमें बाड़ा डाल के रख दीजिए। படிக்கிற பிள்ளை ஆசீர்வதிக்க ஐயா. पढ़ने वाले बच्चों को आशीष ஆராதனை கலந்து கொள்ளும்படிய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आराधना में भाग शामिल होने वालों के लिए हम प्रार्थना करते எந்த हैं। இடத்துல இருக்கிறாங்களோ जहाँ कहीं वो बैठे हैं, அவருடைய வாழ்க்கையில उनकी जिंदगी ஒரு में மாற்றங்களை ஆண்டவரே இந்த மாசத்துல நீ செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். एक बदलावट उन्हें देने के लिए इस महीने में आपसे विनती करते எங்களை हैं। முற்றிலுமாக நாங்கள் हम தாழ்த்துகிறோம். अपने आप को झुकाते हैं। ஆண்டவருடைய கரத்தை அர்ப்பணித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். आपके हाथों में हम समर्पित करते நீர் हैं। பெருக நாங்கள் சிறுகணும். आप बड़े हम घटे। ஜெபத்தை கேட்டி நன்றி. प्रार्थना सुना धन्यवाद। இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमीन। நாம் ஒரு சில பாடலை படித்து தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். हम कुछ तमिल गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। முதலாவது ஒரு தமிழ் பாடலை படிக்கலாம். पहला हम एक तमिल गीत गाएं, அதற்கு பிற்பாடு இந்தி பாடலை படித்து उसके बाद हम एक हिंदी गीत गाकर நாம் தேவனை நம்ம ஆராதிக்கலாம். परमेश्वर की हम आराधना करें। நீங்களும் இருக்கிற இடத்திலேயே आप भी जहाँ बैठे हैं உங்களோடு நீங்கள் இணைந்து ஆராதிக்கும்படியாக हमारे साथ मिलकर आराधना करने के உங்களை लिए நாங்கள் அன்புடன் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आपसे हम प्रेम से विनती करते நாம் हैं। முதலாவதாக पहला गीत गाएं, ஒரு தமிழ் பாடலை एक படிக்கலாம். तमिल गीत गाएं। ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே இந்த பாடலை படிக்கலாம். படித்து தேவநாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்தலாம். ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே, என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே, கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. குற்றங்களை மன்னித்தாரே,
நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். ஓடினாலும் நடந்தாலும் நலன் குறைவதில்லை. ஓடினாலும் நடந்தாலும் பலன் குறைவதில்லை. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. குற்றங்களை மன்னித்தாரே, நோய்களை நீக்கினாரே. குற்றங்களை மன்னித்தாரே, நோய்களை நீக்கினாரே. படுகுழிந்து மீட்டாரே, ஜீவனை மீட்டாரே. எல்லாம் படிக்கலாமா? படுகுழி நின்று மீட்டாரே, ஜீவனை மீட்டாரே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. என் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவா. நீங்க சொல்லுங்க பாப்பா வீட்டுல இருந்துகிட்டே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम इतने समय एक तमिल गीत को गाए थे। अभी हम मिलकर एक हिंदी गीत गाएंगे। गीत का नाम है यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ये सब गीत हम मिलकर ताली बजाकर गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है। कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी
यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। हम भजन संगीता पढ़ने जा रहे हैं। प्रार्थना। परमेश्वर हमारे वचन के रहस्य जानने के लिए हमारी मन की आंखें खोल दे। आमीन। भजन संगीता 20 सैम 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து உமக்கு ஒத்தாசை அனுப்பி சீழ்ந்து உம்மை ஆதரிப்பாராக. वह तेरे सब अन्य बलियों के स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। அவர் உமது மன விருப்பத்தின்படி உமக்கு தந்தருளி உமது ஆலோசனை எல்லாம் நிறைவேற்றுவாராக. तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाला पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उजड़ देगा। கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணவரை ரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன். தமது வலதுகரம் செய்யும் ரட்சிப்பின் வல்லமையை காண்பித்து தமது பரிசுத்த வானத்திலிருந்து அவருடைய ஜெபத்தை கேட்பார். किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள், நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். आखिरी वचन हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तू हमारा जवाब दे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अभी हम लोग इतने समय गीत गाकर परमेश्वर की महिमा किए, स्तुति किए और कुछ समय के लिए परमेश्वर का वचन भी पढ़े। तो अभी थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर की वचन को ध्यान करेंगे। कौन सा अध्याय ध्यान करने वाले हैं? जो भजन अभी हमने सब मिलकर पढ़ा था, जो भजन संगीता चैप्टर 20, सैम्स चैप्टर 20, यही भजन आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। एक 5 से 10 मिनट थोड़ा हम लोग ध्यान से इसको पढ़कर देखेंगे। आज हम लोग कुछ नए कार्य को परमेश्वर हमें सिखाएगा और हमसे बातें करेगा। हम सब जन पवित्र वचन को, परमेश्वर का शास्त्र को अपने हाथों में खोलकर इस अध्याय को खोलकर रखेंगे, जो है भजन चैप्टर 20, सैम्स चैप्टर 20। तो ये भजन सबसे पहला क्या कहलाता है वो पहला देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका भजन के ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये है एक विजय के लिए की जाने वाली एक प्रार्थना या फिर एक भजन कह सकते हैं, या संकट के समय या फिर मदद के लिए जो की जाने वाली एक भजन, वो भजन है जो परमेश्वर से हम मांगने वाला एक जो सहायता है उसके लिए की जाने वाली एक भजन है। केवल वो सहायता के लिए नहीं, लेकिन उस पर विजय मिलना है क्योंकि भरोसे के साथ करने की जाने वाली एक भजन है। तो आज हम लोग इस भजन से एक 3 या 4 कार्य थोड़े समय में ध्यान करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे जो लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। सबसे पहला वचन क्या लिखा है? संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन, तो इससे हमें क्या देखने मिलता है? संकट के दिन में यहोवा क्या करता है? हमारी सुनता है। संकट के समय कौन हमारा सुनता है? जरा आप अपने आप से पूछ कर देखिए। हम सब जन संकट के मार्गों के बीच में से ही गुजर कर आए हैं या अनेक लोग गुजर भी रहे हैं। तो इस संकट के समय में हमारा सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। अधिक समयों में हमारी समस्या यही है कि संकट के समय में, मेरी दुविधा में, मेरी व्याकुलता में
जब मैं अकेला हूँ, जब मैं समस्या में हूँ, जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तब मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। यही हम में से अनेकों की समस्या। तो पहला ही वचन में सबसे पहला क्या कहा गया है? संकट के समय अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए, हमें सुनने के लिए कोई है, तो वो केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। इस संसार में अनेक लोग अपने आप को ऐसा दिखा सकते हैं कि तेरे संकट के समय में मैं तेरे साथ हूँ, तेरी वेदना के समय में मैं तेरे संग खड़ा हूँ, ऐसा अनेक लोग कहते हैं, लेकिन खड़ा होने वाला कोई है क्या? नहीं। जब संकट के समय आप अपने आजू बाजू में देखेंगे तो कोई रहता है क्या? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय वो तेरी दुविधा को सुनेगा। परमेश्वर हमारी दुविधा को सुनता है, संकट के समय हमारी व्याकुलता को सुनता है। हमारी समस्या को समझने वाला, सुनने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। कितना अच्छा परमेश्वर है। तो सबसे पहला हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर संकट के समय हमारी जो दुविधा को परमेश्वर क्या करता है? सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी वेदनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी समस्याओं को हमारे साथ बांटने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। दूसरा वचन में क्या लिखा है? वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल लेगा। अब देखिए, सबसे पहला समस्या या संकट। दूसरा हमारा परमेश्वर कौन है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? हमारी सहायता करता है। इतना ही नहीं, वो क्या करता है? हमें संभालता है, हमारी सहायता करता है, हमारी संभालता है। ये संकट के समय में, अब पहला वचन और दूसरा वचन को जरा सा ज्वाइंट करके देखिए। पहले जो व्यक्ति समस्या में था या संकट में था, दूसरा परमेश्वर क्या कहता है कि वो हमें सहायता करता है, वो हमारी संभालता है हमें। तो जो व्यक्ति समस्या के बीच में से चल रहा है, उसको किसकी ज़रूरत रहती है? एक सहायता की ज़रूरत रहती है। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि कोई मुझे संभाल ले, कोई मुझे संभालेगा करके वो चाहता है। यही हर एक मनुष्य की जो चाहत यही है। तो वही हमारा परमेश्वर कौन है? हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में अनेक लोग पहला वचन तक हमारे साथ रहेंगे। पहला वचन में क्या लिखा है कि संकट के दिन वो सुन लेगा। अनेक लोग, संसारिक लोग ये कर लेंगे, कोई लोग ये भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई लोग ये भी कर लेंगे कि संकट के समय हमारी बातें सुनना, संकट के समय हमारी जो वेदना है उसको सुनना। लेकिन दूसरा समय, संकट के समय हमारी सहायता, ये कौन करता है? संकट के समय हमारे साथ कौन खड़ा रहता है? संकट के समय हमें संभालता कौन है? वो है केवल यीशु मसीह। तो हमारे यीशु मसीह का जो गुण देखिए, कितना अच्छी तरह से इस अध्याय में लिखा गया है। संकट के दिन में वो क्या करता है? हमारी सुनता है। हमें सुनने वाला कोई व्यक्ति हमें चाहिए रहता है। इस समस्या के दिनों में हमें सुनने के लिए, हमारी दुविधाओं को सुनने के लिए कोई मेरे लिए है क्या? ऐसा प्रश्न हमारे अंदर बहुत समय आती है। तो उस समय में हमारी वेदनाओं को सुनने के लिए एक व्यक्ति है, वो है हमारा यीशु मसीह। उससे भी बढ़कर वो केवल सुनता नहीं है। दूसरा वचन में हमने क्या देखा? केवल वो सुनकर जाने वाला परमेश्वर नहीं, वो क्या करता है? हमारी सहायता करता है। सहायता केवल नहीं, वो हमें संभालता है। कितना अच्छा परमेश्वर है, जरा सोच कर देखिए। वो हमें सुनता है, वो हमें सहायता करता है, सुनकर हमारी वेदनाओं को देखता है, अपनी वेदनाओं को समझकर हमारी मदद करता है, सहायता करता है और हमें संभालता है। तीसरा वचन में देखेंगे, चौथा वचन में देखिए। तीसरा, वो सुनकर, पहला क्या किया? हमारा परमेश्वर हमारी दुविधाओं को सुना, हमारी समस्या को सुना। दूसरा, उसने क्या किया? हमारी मदद किया, हमें संभाला। तीसरा, वो क्या करता है? ये बोनस पॉइंट है। चौथा पॉइंट को पढ़कर देखिए। वो तेरी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। अभी एक मनुष्य को सोचकर देखिए, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या हैं। एक मनुष्य को इमेजिन करके देखिए, अपने आप को नहीं, लेकिन एक मनुष्य को सोचकर देखिए, उसके जीवन में बहुत समस्या है। तो उसके मन में क्या प्रश्न रहेगा? उसकी ज़रूरत अभी क्या रहेगी? सबसे पहला ज़रूरत, जो कोई मनुष्य के जीवन में संकट या समस्या है, उसकी सबसे पहला ज़रूरत कि कोई मुझे सुन ले। वो यही चाहता है कि सबसे पहला कोई मेरी दुविधा को सुन ले, मेरी जो दिल की रोना है उसको कोई सुन ले। यही उसकी सबसे पहली ज़रूरत है, वो हमारा परमेश्वर पूरा करता है। दूसरा, वो मनुष्य क्या चाहता है? केवल कोई मेरी जो रोना है न सुनते हुए, केवल सुनकर न जाते हुए कोई मदद के लिए सामने आए,
कोई मुझे संभालने के लिए सामने आए, कोई मेरी सहायता करने के लिए हाथ बटाए। तो हमने क्या देखा, हमारा परमेश्वर केवल सुनकर जाता नहीं है, वो सुनकर क्या करता है, सहायता करता है। ये दोनों हम मनुष्य लोग के जीवन में बहुत ही जो कॉमन है, हमेशा हम लोग ये कार्य हमारे जीवन में होता रहता है। एक जो मनुष्य समस्या में है उसकी ज़रूरत यही है। और तीसरा जो हमने पढ़ा, ये बोनस पॉइंट है। तो हमारी जो हृदय के पीछे छुपी रहती है, जो सहायता कर गया है, उसके बाद उसकी ज़रूरतें क्या है, उसके मन में कुछ इच्छा रहेगी, उसकी मन में कुछ चाहते रहेगी जो वो करना चाहता है। तो ये बोनस पॉइंट केवल हमारा परमेश्वर करता है। हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारी हृदय को जांच कर, हमारी चाहतों को जांच कर, हमारी मदद कर केवल चला नहीं जाता है, हमारी चाहतों को जांच कर वो भी पूरा करता है। कितना अच्छा परमेश्वर है। तो 3 कार्य हमने देखा। संकट के दिन यहोवा परमेश्वर क्या करता है, हमारी सुनता है, सुनकर वो क्या करता है, हमारी मदद करता है, हमें संभालता है। तीसरा वो क्या करता है, वो हमारी मन की इच्छाओं को जानकर उसे वो क्या करता है, पूरा करता है। तो इतना अच्छा परमेश्वर हमारा है। तो इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, इसके बदले में वो हमसे क्या चाहता है, वो या फिर वो चाहे या ना चाहे, समझो कोई मनुष्य हमारी मदद करता है, इस संसार में कोई मनुष्य हमारी मदद करता है, तो हम क्या चाहते हैं, उसको बदले में क्या करें। बदले में हम एक थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जब हमारे लिए इतना मदद करता है, इतना हमारे साथ दिन रात डटे रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। 5वां वचन में देखिए क्या लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़ा करेंगे। क्या लिखा है, हम उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। उद्धार, कौन सा उद्धार? यहाँ पर उद्धार का अनेक मतलब हो सकता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट अर्थ क्या है, उसमें जिसको बचाया जाना, उसको भी उद्धार कहा जाता है। मतलब कोई प्रॉब्लम में है तो उसको बचाया जाना। परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है। कैसा उद्धार किया है? इस संसार से अलग किया है, संसार से हमें बचाकर अलग कर लेकर आया है, वो उद्धार है। इसी तरह से बचाए जाना, सेवियर, उसको कहा जाता है उद्धार। तो इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर तेरे उद्धार के कारण, परमेश्वर ने जो हमें बचाया है, हमें जो संकट से हमें बचाकर लेकर आया है, उस उद्धार के कारण मैं क्या करूँगा, हर्षित होकर गाऊँगा, वो भी ऊंचे स्वर से परमेश्वर का हर्षित होकर गाऊँगा। अभी अपने आप को जरा पूछ कर देखिए, परमेश्वर हमारी कितना मदद करता है, दिन रात हमारी सहायता करता है, लेकिन क्या हम बदले में उसका जो आराधना करते हैं, हर्षित होकर क्या हम उसके लिए गुनगुना कर गाते हैं? क्या हम कलीसिया में आते तो उसके लिए ऊंचे स्वर से गाते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग उसकी गीत के साथ स्तुति करके उसकी आराधना करते हैं क्या? वो भी पूरे मन के साथ। क्या लिखा है कि हर्षित होकर, परमेश्वर की जो गीत है ऐसे ही नहीं गाना है, ऐसे ही आए गाए चलेगा, ऐसा नहीं। हर्षित होकर आनंद के साथ उसकी स्तुति आराधना करना है, वही परमेश्वर चाहता है। तो हमें क्या करना है, हर्षित होकर उसकी आराधना करना है। तो समझ कर देखो, 4-5 महीने हो गए, हमारी कलीसियाएं सब बंद है और हम लोग कलीसिया में मिलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो आराधना न कर पाए तो उसका दुख आपके अंदर है क्या? तो हम क्या किए, हर्षित होकर गा नहीं पा रहे हैं, हर्षित होकर उसकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट हमारे मन में आना चाहिए, वो है दुख। कौन सा दुख? हर्षित होकर उसकी आराधना न कर पाने का दुख। दाऊद से पूछेंगे तो दाऊद ने क्या कहा, चलो परमेश्वर का भवन में चलो करके बोलते ही वो क्या हुआ, आनंदित हुआ या हर्षित हुआ? तो वो हर्षित, वो आनंद आपके अंदर है क्या? ये बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है। जो परमेश्वर हमारी इतनी मदद करता है, तो क्या हम उसकी हर्षित होकर आनंद के साथ उसकी गीत गा पाते हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 7वां वचन में देखिए, ये सब जो करता है, उसके बाद जो परमेश्वर से हम जो उसकी भलाई को पाते हैं, परमेश्वर जो हमारी मदद करता है, सहायता करता है, उसके बाद हमारा हृदय कैसा रहना चाहिए? 7वां वचन में कैसा लिखा है देखिए, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। इसमें क्या अर्थ आता है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। इसका मतलब क्या है? पहले ज़माने में जो धनवान था
जो पैसे वाला था, धनी व्यक्ति था, उसके पास ही ये धन दौलत या फिर जो रथ है, घोड़े हैं, उसके पास ही हुआ करता था। तो अनेक लोग का भरोसा अपने जो धन और दौलत पर रहता है। तो जो परमेश्वर, वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो भलाई उन्हें मिली है वो परमेश्वर से मिली है। देखिए 4 वचन में हमने क्या देखा था, परमेश्वर ही हमारा इच्छा पूरा करता है, परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। तो जो कुछ हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो परमेश्वर ने ही हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारी इच्छा को पूरा किया है। तो हमने कमा के कुछ लिया है क्या? नहीं, परमेश्वर ने हमारे इच्छा को पूरा किया है। तो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं। अभी धन संपत्ति सब कुछ आ चुका है, परमेश्वर ने अनुग्रह से सब कुछ दे दिया है। तो फिर अगले बार कुछ समस्या आई तो हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे पास धन दौलत आ चुका है, अब मैं अपना समस्या या फिर मेरी जो प्रॉब्लम है मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। ऐसा नहीं, तुरंत हमें वापिस नीचे बेसिक्स में आ जाना है। बेसिक में क्या है? मैंने संकट के समय परमेश्वर की ओर देखी। हमारे पास जितना भी धन दौलत कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा भरोसा जो संपत्ति के ऊपर नहीं जाना चाहिए, धन दौलत के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारे भरोसा जो पहला वचन है उसी में टिका रहना चाहिए, वो है मैंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें देखी। अपनी जो नज़र परमेश्वर की ओर रहना है, संकट के समय उसकी ओर देखते रहना है। तो परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहता है। 4 कार्य हमने देखा। सबसे पहले संकट के समय यहोवा क्या करता है? हमारी सुन लेता है। वो केवल हमारी सुनता नहीं, हमारी सहायता करता है, वो हमें संभालता है। और इतना ही नहीं, वो क्या करता है? हमारी मनोकामना को पूरी करता है और हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, हमारी चाहत को पूरी करता है। तो उसके बदले में हमें क्या करना है? उसके बदले में हमें परमेश्वर को ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर जो हमारी मदद करता है उसके बदले हमें हर्षित होकर गाना है। और ये बड़प्पन हमारे मन में कभी नहीं आ जाना है, ये जो गर्व हमारे अंदर कभी नहीं आ जाना है। और हमारा भरोसा परमेश्वर से हटकर धन दौलत संपत्ति इसके ऊपर कभी भी नहीं चले जाना है। ये सब संसारिक कार्य है, ये सब धन दौलत सब कुछ संसार का है, लेकिन हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर के ऊपर टिका रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीषित रहेगा। ये वचन को आप भी ध्यान कर देखिए कि परमेश्वर किस तरह हमारे साथ रहता है, किस तरह से हमारी मदद करता है, और परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको जीवन भर चलाएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। நம்ம இப்பொழுது ஆராதனைக்குள்ள கடந்து செல்லுவோம்। हम सब आराधना की तरफ जाएंगे। ஆண்டவர் இந்த நல்ல நாளை நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने आज हमें अच्छा दिन दिया है। அவருடைய பாதத்தில் வந்து நாம் ஜெபிப்பதற்கு, उसके चरणों में आकर हम प्रार्थना करने के लिए, அவரை நோக்கி பார்ப்பதற்கு, उसकी ओर देखने के लिए ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல ஒரு கிருபைகளை ஜீவன் அவர் கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने हमें अच्छा एक अनुग्रह और हमें जीवन दिया है। கடந்த 8 மாசம் முழுக்க நம்மளை கண்மணியை போல பாதுகாத்து, पिछले 8 महीना भरकर परमेश्वर में आंखों की पुतली के समान संभाल कर, தகப்பனை போல் நம்மளை தோளில் சுமந்து கொண்டு வந்து एक पिता के समान अपने कंधों पर हमें இந்த उठाकर 9வது மாசத்துக்குள்ளாக इस 9 महीना में நீங்களும் நானும் பிரவேசிக்கும்படியாக, आप और हम प्रवेश करने के இந்த लिए, நாளை ஆண்டவர் காண செய்யும்படியாக ये दिन परमेश्वर में देखने के लिए दिया நமக்கு है। ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார்। उसने हमें जीवन दिया है। ஆனா நாம் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரமாக हम सब थोड़ी देर தேவனை நம்ம ஆராதிக்க போறோம்। परमेश्वर की हम आराधना करने जा நீங்க रहे हैं। எங்களோடு கூட आप हमारे இந்த साथ ஆராதனையில इस आराधना में நீங்க பங்கு கொள்ளும்படியாக आप भाग लीजिए। தேவ பயத்தோடு கூட, परमेश्वर का एक भय के தேவ साथ, பக்தியோடு கூட परमेश्वर का एक भक्त के நாம் साथ இதில் கலந்து கொள்ளும்படியாக आप लोग इसमें भाग लेने के கர்த்தர் लिए நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்। परमेश्वर यही हमसे चाहता இந்த है। 9ஆம் மாசத்திலும் கூட इस 9वें महीने में भी நாம் சொல்லுவோம், हम कहेंगे, நீரே என் தஞ்சம், तू ही मेरा संस्थान நீரே है, என் கோட்டை, तू ही मेरा गढ़ है, நீரே என் இரட்சகர், तू ही मेरा उद्धार நீரே करता, என் ராஜா, तू ही मेरा राजा है। நான் உம்மை தேடுவேன், मैं तुझे ढूंढूंगा நாள் முழுதும் உம்மை சேவிப்பேன், और पूरे दिन में तेरी सेवा करूंगा। வாழ்நாள் எல்லாம் मेरी जिंदगी भर எனது எல்லாவற்றிலும் मेरी सारी चीजों உம்மை से நான் நேசிப்பேன்। मैं तेरे ही प्रेम रखूंगा। இயேசுவே, यीशु, இயேசுவே ராஜா, यीशु तू ही राजा है, இயேசுவே தேவன், तू ही
ही हमारा परमेश्वर, இயேசுவே மீட்பர், तू ही हमारा उद्धार करता இயேசுவே है। என்று சொல்லி यीशु करके இந்த பாடலை படித்து हमें गीत गाकर நாம் ஆராதனைக்குள்ளாக हम आराधना की நாம் तरफ கடந்து செல்லுவோம். आप उसमें जाए। அவர் நல்லவர், वो अच्छा है, அவருடைய கிருபை மாறாதது, उसका अनुग्रह कभी नहीं बदलता। அவரே ஆண்டவர், वही परमेश्वर அவரே है, ரட்சகர், वही उद्धार करता அவரே है, கோட்டை, वही गढ़ है, அவரே பலன், वही हमारा ताकत, அவரே ரட்சகர், वही उद्धार அவரே करता, நமக்கு ராஜா. वही हमारा राजा நம்ம है। எல்லாரும் தேவனை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். हम सब उसकी ओर देखें। ஆமென். तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा सारे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अब सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं। हम सब दिल से गाएंगे, हम लोग आवाज उठाकर तुझे दूंगा सारे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे चीजों में। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। और सब लोग कहेंगे, हम लोग मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सब लोग बोलेंगे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। उद्धार मेरा तो, हम सब लोग कहेंगे, गाएंगे हम लोग। मेरी जगह गाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा सब सारे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारे चीजों में। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा सारे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी चीजों से। मैं हूँ, सब लोग बोलेंगे, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, ओ लॉर्ड जीसस, साथ तू रहे मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करो हम सभी लोग अपने दिल से, पूरे मन से प्यार करेंगे प्रभु से। हम यीशु से तेरी सेवा करूंगा, अपनी सारी चीजों में मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा सारे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ, सब लोग दिल से बोलेंगे मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। सब लोग हाथ उठा के, आवाज उठा के उसके नामों को ऊंचा उठाएंगे। मैं हूँ या अपने हाथों को उठा के प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ लॉर्ड जीसस, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। फिर से हम रिपीट गाएंगे हम लोग। मैं प्रभु मरने के लिए भी तैयार हूँ आपके लिए, आपके राज्यों के लिए प्रभु जी, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ प्रभु जी करके हम सब लोग कहेंगे मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി हाथों को उठाकर இருக்கிற இடத்திலேயே जहाँ पर हम बैठे हैं, ஆண்டவரே हे प्रभु, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னது போல प्रेरित पौलुस कहता है, சோதரம் இனி நான் அல்ல अब मैं नहीं, கிறிஸ்துவே मसीह எனக்குள் அவர் பிழைத்திருக்கிறார்। मुझ में जीवित है। ஆண்டவரே हे प्रभु जी, நாங்கள் உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் हम ஆண்டவரே, केवल आपकी ओर देख रहे நீரே हैं प्रभु। எங்களுக்கு கோட்டை ஆண்டவரே, आप भी हमारा गढ़ நீரே है, எங்களுக்கு அடைக்கலம் आप ஆண்டவரே, भी हमारा संस्थान நீர் है, எங்களுக்கு இரட்சகர் ஆண்டவரே, आप भी हमारा उद्धार करता நீரே है, எங்களுடைய ராஜா தகப்பனே आप भी हमारा प्रभु राजा ஆண்டவரே, है, நீர் தான் இரட்சகராய் இருக்கிறீர், आप भी हमारा उद्धार करता இந்த है, உலகத்தை ரட்சிக்கிறவர், इस दुनिया को उद्धार இந்த करने वाला, உலகத்துக்காக சிலுவையில மரித்தவர், इस दुनिया के लिए क्रूस पर आपने मरे। அவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம்। हम क्या उसकी ओर देखें ஆண்டவரே, प्रभु जी, இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு, आपकी सेवा करने, உடைய சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு आपका सुसमाचार நான் बतलाने ஆயத்தமா இருக்கிறேன், मैं यहाँ என் हूँ, குடும்பம் ஆயத்தமா இருக்கிறது, मेरा परिवार यहाँ है, நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் हम तैयार என்று हैं। நீங்க சொல்வீர்களா? क्या आप ऐसे कहेंगे? எத்தனை क्या கோடி கோடி மக்கள் कितने करोड़ों करोड़ों இயேசுவை लोग அறியாமல் இருக்கிறார்களே, यीशु के अनजान में எத்தனை हैं, கிராமங்கள் कितने गांव இன்னும் இயேசுவை அறியவில்லையே, अब तक यीशु को नहीं நம்ம जाना। இந்தியா தேசம் हमारा भारत இன்னும் देश முழுவதுமாக अब पूरी रीति से இயேசுவை அறியவில்லையே। यीशु को नहीं पहचाना। ஆண்டவரே, हे प्रभु, அறியப்படாத இடங்களில், जहाँ कहीं आपका नाम உம்முடைய नहीं நாமம் जानते, சொல்லப்படாத இடங்களில் जहाँ कहीं आपका नाम नहीं लिया நீங்க गया இருக்கிற है, இடத்திலேயே आप जहाँ बैठे உங்க हैं சத்தத்தை உயர்த்தி நீங்க சொல்லுங்க,
சொல்லுங்க. आप आवाज उठाकर ஆண்டவரே कहिए, நான் அந்த இடத்துக்கு நான் போகிறேன் ஆண்டவரே. मैं वहां जाने को நான் तैयार அந்த हूँ, இடத்துக்கு நான் போகிறேன் ஆண்டவரே. मैं वहां जाने को என்னை तैयार நீர் हूँ, அனுப்பும் ஆண்டவரே. आप मुझे நான் भेजिए, ஆயத்தமா இருக்கிறேன். मैं तैयार हूँ, நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். मैं तैयार என்னுடைய हूँ, ஜீவனை கொடுப்பதற்கும் मैं अपनी जान देने உமக்காக के இரத்த लिए, சாட்சியாக மரிப்பதற்கும் आपके लिए लहू की गवाही நான் भरने ஆயத்தமா के लिए இருக்கிறேன் என்று சொல்லி मैं तैयार हूँ உங்க कहने के சத்தத்தை लिए। உயர்த்தி நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். क्या आप आवाज उठाकर प्रार्थना ஆண்டவர் ஒருவனை करेंगे? தேடுகிறார். परमेश्वर एक व्यक्ति को யார் என் ढूंढता है, காரியமாக போவார்? कौन मेरे कार्य के लिए யாருடைய जाएगा, காரியமாக போவார்? कौन मेरे कार्य के लिए யாரை நான் जाएगा, அனுப்புவேன்? किसको मैं भेजूं? அவருடைய உள்ளம் ஏங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. उसका दिल तड़प रहा நீங்க है। சொல்லுவீங்களா இந்த நாட்களில்? आज के दिन आप कहेंगे இந்த क्या? ஓய்வு நாள் நீங்க சொல்லுவீங்களா? इस विश्राम दिन आप कहेंगे, ஆண்டவரே हे प्रभु, நீர் தந்த ஜீவன் அப்பா, आपने दिया हुआ நீர் जीवन எங்களுக்கு है, தந்ததான அந்த கிருபை ராஜா, आपने दिया हुआ நாங்கள் இன்றைக்கு अनुग्रह है। வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். आज हम लोग जी रहे हैं நாங்கள் प्रभु, உமக்காக हम आपके எதையும் लिए செய்வதற்கு कुछ भी நாங்கள் करने ஆயத்தமா இருக்கிறோம் என்று சொல்லி तैयार है। உண்மையாகவே இங்கே சொல்வீர் என்று अगर சொன்னார். सच्चाई से आप ஒரு வல்லம் कहेंगे, உங்களை தொடும். एक सामर्थ आपको ஆண்டவர் छुएगी, உங்களோடு கூட அவர் பேசுவார். परमेश्वर आपसे ஒரு बातें ஊழியத்தின் करेंगे, பாரத்தை கூட அவர் பகிர்ந்து एक கொள்ளுவார். सेवकाई की बोझ आपको அவர் என்ன देंगे, செய்வணும் உங்களுக்கு அவர் वो சொல்லுவார். कहेंगे आपको क्या करना உங்களை ஒப்பு है, கொடுங்க. आप समर्पण உங்களை ஒப்பு कीजिए, கொடுத்து நீங்க செபிங்க. अपने आप को समर्पण ஆண்டவரே कीजिए। நீர் தான் உங்களுடைய ராஜா தகப்பனே, आप भी मेरा राजा நீர் தான் हो, உங்களுடைய மேய்ப்பர் ஆண்டவரே. आप भी मेरा चरवाहा நான் हो, ஆண்டவர் நீர் தான் ஒளித்து வைக்கிற இடம் நாங்க ஆண்டவரே. आप भी मेरा छिपने का स्थान எல்லாரும் है। நம்ம சொல்லுவோம். क्या हम सब कहेंगे? எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம सब செபிக்கலாம். लोग अर्पण करके प्रार्थना இல்ல ஒப்பு करें, கொடுத்து நம்ம सब செபிக்கலாம். लोग अर्पण करके प्रार्थना கர்த்தர் करें। நல்லவர். परमेश्वर अच्छा கர்த்தர் है, நல்லவர். परमेश्वर யார் अच्छा ஒப்பு है। கொடுத்து இருக்கிறீங்களோ जो जो अपने आप को अर्पण किए, நிச்சயமாகவே निश्चय உங்களை ஆண்டவர் வல்லமை எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துவார். आपको परमेश्वर सामर्थ्य रूपी से அநேகருக்கு करेगा। ஆசீர்வாதம் பாத்திரமாக अनेक लोग आशीर्वाद के கர்த்தர் पात्र, உங்களை மாற்றுவதற்கு வல்லமை உள்ளவர். परमेश्वर बदलने में உங்க सामर्थ्य है। அருகாமையில வந்து இருக்கிறார். आपके करीब आया உங்க है, அருகாமையில வந்து இருக்கிறார். आपके बगल बैठा है, கண்ணீரோடு அவர் கேட்கிறார். आंसू से कह உனக்கு रहा है, நான் என்ன செய்ய मैं வேண்டும்? तेरे लिए क्या करूं, உனக்கு நான் என்ன செய்ய मैं வேண்டும்? तेरे लिए क्या எந்த करूं, சொல்லுங்க இருக்கிறீங்க? कौन सी परिस्थिति में எப்படிப்பட்ட है, சொல்லுங்க இருக்கிறீங்க? कौन सी स्थिति में அவர் உங்ககிட்ட है, கேட்காரு, वो आपसे पूछ நான் रहा உனக்கு है, என்ன செய்ய வேண்டும் மகளே? मैं तेरे लिए क्या करूं मेरी உங்க बेटी, தேவைகளை சொல்லுங்க. अपनी जरूरत को உங்க कहिए, ஏக்கத்தை சொல்லுங்க. आपकी इच्छा को அவர் कहिए, நிறைவேற்றுவதற்கு वो पूरा करने இந்த में மாசத்துல इस महीना அவர் உங்களுக்கு போதுமானவர். आपके लिए काफी है। ஜீசஸ் நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें। எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे प्रेम करने वाले पिता आपको இந்த धन्यवाद। ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்காக நன்றியோடு நாங்கள் इस துதிக்கிறோம். विश्राम दिन सुबह के समय आपको धन्यवाद। இந்த ஆராதனையில इस आराधना के இதுவரைக்கும் समय எங்களை நடத்தினீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. आपने अभी तक हमें संभाला चलाया, உங்களுடைய धन्यवाद। பிரசன்னம் கூட இருந்தது உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपकी तेज हमारे संग था, इसकी நாங்கள் धन्यवाद। பாடலை படிக்கும் பொழுது जो गीत गा रहे நாங்கள் थे, உண்மையாகவே हम ஒரு सच्चाई से பரலோக வல்லமை நாங்கள் பெற்றோம் ஆண்டவரே. एक स्वर्ग का अनुभव को हमने ஆண்டவரே पाया, ஒரு பிரசன்னத்தை நாங்க உணர்ந்தோம் ஆண்டவரே. आपकी प्रसन्नता को महसूस किए। ஆண்டவரே இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற, इसे सुनने இதை वाले, பார்த்து கொண்டு இருக்கிற इसे देखने தேவனுடைய वाले பிள்ளைகள் எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் प्रभु के जन कोई भी स्थिति में क्यों அவர்களை ना நீ हो, விடுவிக்கும்படியாக செபிக்கிறேன். उनको आप छुड़ाइए, அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் उनको செபிக்கிறோம். आप आशीष தேவ कीजिए। கருத்துக்குள்ளாக परमेश्वर के हाथों எல்லா में பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே सभी बच्चों को தாழ்த்தி நாங்கள் வெறுமையாக்குகிறோம். हम झुकाकर आपके हाथों में நீர் देते பிறகு हैं। நாங்கள் சிறுகணும். आप बड़े, हम घटे, உம் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके नाम की महिमा நாரத हो। முழுப்படுத்திக் கொண்டு நமக்கு நன்றி. इस आराधना को आप स्वीकार இயேசு कीजिए। மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்காக इस अच्छे विश्राम दिन सुबह के समय தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। உங்களை மறுபடியுமாக இந்த மாசத்துல பார்ப்பது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷம். आपको फिर से इस नए महीने में देखने में हमें बड़ी आनंद होती है। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்து நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். आपको प्रेम की अभिवादन करते हैं। கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர். परमेश्वर कितना अच्छा है। இந்த நாளிலும் கூட इस दिन में भी எத்தனையோ பிரச்சனை மத்தியிலும் கூட कितनी समस्याओं के बीच में, உபத்திரத்தின் பாதையில கடந்து சென்றாலும் கூட कितने तकलीफ के मार्ग में हम चलते हुए भी அற்புதமாக 8 மாசம் நம்மளை தோளின் மேல கர்த்தர் சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने कंधों पर उठाकर चला है। 9வது மாசத்துல इस 9वां महीने में தோளில சுமந்து கொண்டு வந்தவர் कंधे पर उठाया हुआ நம்மளை परमेश्वर
கீழே போடவில்லை. हमें नीचे नहीं पटका। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है இந்த உலகத்தின் முடிவு इस பரியந்தமும் दुनिया के अंत சகல நாட்களிலும் सारे दिन நான் உங்களோடு கூட சொல்லி मैं இருக்கிறார். तुम्हारे ही साथ அவர் हूँ। உங்களோடு கூட இருக்கிறார். वो आपके साथ है। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। நான் நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன், हम निश्चय हम सोचते हैं ஒவ்வொரு நாளும் आप हर एक दिन வேதமே வெளிச்சம் என்பதான தின தியான பகுதியை जो वचनी दीपक रोज की इस वचन जो है நீங்கள் எல்லாரும் பார்ப்பீர்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக நான் நம்புகிறேன். आप रोज वो वचन आप देख रहे करके हम विश्वास करते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. परमेश्वर का वचन को सुनिए। நிச்சயமாக निश्चय அந்த வார்த்தை உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தைரியப்படுத்தும். वो वचन रोज आपको हिम्मत देगी। உங்க வாழ்க்கையில பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அது செய்யும். आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह परमेश्वर देते रहेंगे। அடுத்தபடியாக अगला जो நீங்கள் है ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்க கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். आप हर एक जो संडे को परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। இந்த வார்த்தையின் மூலமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறேன். आप इस वचनों के अनुसार प्रभु आपको आशीष किया है करके विश्वास करते கர்த்தருடைய हैं। வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்காக நம்புகிறேன். परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े जो बदलावट लाया करके हम विश्वास அப்படி करते हैं। யாருடைய வாழ்க்கையிலாவது கர்த்தர் பேசினார் என்று சொன்னால், अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा एक कार्य किया है तो அற்புதம் செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், या अद्भुत काम किया है நீங்க तो எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். आप हमें बताइए। நாங்கள் உங்களுடையதான சாட்சிகளை हम आपकी गवाही को இந்த வீடியோல போட்டு इस वीडियो में देकर அது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்படியாக, वो औरों को उपयोग होने के உங்கள் लिए மூலமா கர்த்தருடைய காரியத்தை செய்யும்படியாக आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करने அது के लिए பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொல்லி वो बहुत उपयोग होगा உங்களை करके நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आपसे हम विनती करते அதை हैं। எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். आप लोग हमें उसके बारे में உங்களோடு बताइए। இணைந்து आपके साथ मिलकर நாங்களும் हम भी கர்த்தருடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம். परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். हमारे साथ हमारे से बातें உங்களுக்கு எந்த कीजिए। ஜெப காரியமானாலும் आपको कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट எங்களுக்கு चाहिए तो தெரியப்படுத்துங்கள். हमें बतलाइए। உங்களுக்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொண்டு இருப்போம். आपके लिए हम लोग हर एक दिन प्रार्थना நாங்கள் करेंगे। தொடர்ந்து நாங்கள் அதற்காக ஜெபிப்போம். हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। கர்த்தர் தாமே अब परमेश्वर ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவாராக. आपको आशीष करके बढ़ोतरी करे। ஆமென். ஆமென். சரியா, இன்னைக்கு ஒரு புதிய மாசத்துக்குள்ளாக நம்ம பிரவேசித்து இருக்கிறோம். आज हम ये नया महीने में हम लोग प्रवेश किए हैं। இது வாக்குத்தத்த ஆராதனை. ये प्रतिज्ञा वचन की आराधना है। இந்த நாளிலும் கூட इन दिनों में भी இந்த மாசத்துல इस महीने में ஆண்டு என்ன வாக்குத்தத்தம் வைத்திருக்கிறார் என்று நம்ம சற்று நம்ம அதற்கு தியானிப்போமாக. परमेश्वर हमें क्या प्रतिज्ञा हमें दिया है, जरा हम उसे ध्यान करें। நீங்களும் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள். आप भी बड़े इंतजार में கர்த்தர் होंगे। என்னோடு பேச மாட்டாரா? प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा क्या? அந்த வாக்குத்தத்த வாக்கு நிறைவேறாதா उसकी प्रतिज्ञा वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं என்று होगा क्या? சொல்லி நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள். आप शायद उस इंतजार में बैठे होंगे। நிச்சயமாக निश्चय இந்த மாசத்துல ஆண்டவர் தந்த வாக்குத்தத்தங்கள் परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा உங்க वचन வாழ்க்கையில கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். आपके जीवन में पूरा அந்த करेगा। வார்த்தை நம்ம படிக்கலாமா? क्या वचन हम पढ़े? மங்களகரமான வார்த்தை, बहुत ही अच्छी वचन है, அருமையான வார்த்தை. बहुत ही अच्छा वचन है। செப்பனியா जपनिया 3ஆம் அதிகாரம் अध्याय 3 15வது வசனம். उसका 15 वचन। கர்த்தர் ஆக்கினைகள் அகற்றி உன் சத்துருக்களை விலக்கினார். இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக நடுவில் இருக்கிறார். இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய். सपनिया अध्याय 3 उसका 15 वचन। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। ஆமென். ஆமென். இந்த மாசத்துல इस महीना में கர்த்தர் இந்த வசனத்தை பேசும்படியாக परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करने के लिए எனக்கு உணர்த்தினபடியினால हमें परमेश्वर ने उत्सुक किया, इसीलिए அதன் மூலமாக நான் பேசுகிறேன். इसीलिए हमसे हम बातें कर रहे இங்க என்ன हैं। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? यहाँ पे क्या वचन दिया है? கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி यहोवा ने तेरा दंड को दूर किया உன் है சத்துருக்களை விலக்கினார். और शत्रु को भी दूर किया है। இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் इज़राइल का राजा यहोवा உன் நடுவில் இருக்கிறார். तेरे बीच में है, இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய். फिर से कोई विपत्ति नहीं भोगेंगे।
செப்பனியா என்று அந்த அதிகாரம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. सपन्या में एक कहा गया है, இது மாசம் செப்டம்பர் மாசம். ये महीना सितंबर महीना, செப்டம்பர் செப்பனியா. सितंबर सपन्या। அப்ப இந்த வசனம் மூலமாக इस वचन के अनुसार இதை நீங்க அதாவது நினைவுபடுத்தும்படியாக आपको यह वचन याद रहने के लिए செப்பனியா அதிகாரத்தின் மூலமாக सपन्या अध्याय के द्वारा கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார். परमेश्वर आपसे बात करता है। கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். परमेश्वर आपके बीच में है। அங்க அவர் நடுவில் இருக்கிறபடினால तो बीच में रहने के அவர் कारण உங்கள் ஆக்கினைகளை அகற்றி விட்டார். वो आपके दंड सब दूर किया வர है। வேண்டியதான ஆக்கினைகள், आने वाला जो दंड था, வர வேண்டியதான துன்பங்களை आने वाला जो तकलीफें था, எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிட்டு वो सब दूर करके உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு வழியாய் வந்த சத்துருவை, आपके पास एक मार्ग से आया हुआ शत्रु, ஒரு வழியாக வந்த மனிதர்களை एक तरफ से आए हुए मनुष्य 7 को வழியாக அவர் விரட்டி விட்டு 7 मार्गों में भगाकर உங்களுக்கு வருகிற தீங்கை எல்லாவற்றையும் விலக்கி போட்டார். आपको आने वाली सारी विपत्तियों से आपको बचाया। கர்த்தர் நம் நடுவில் இருக்கிறபடினால परमेश्वर हमारा बीच में रहने के இந்த कारण மாசத்துல பெரிய பாதுகாப்பு உங்களுக்கு அவர் கொடுப்பார். इस महीना बड़ी सुरक्षा आपको प्रभु எத்தனை देगा। தீய மனிதர்கள் कितने बुराई உங்களுக்கு मनुष्य தீமையான காரியங்களை செய்வதற்கு அவர்கள் புறப்பட்டாலும், आपकी बुराई करने के लिए निकले तो भी, உங்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் கடந்து வந்தாலும், आपके विरोध आया तो भी, நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டிய, கலங்க வேண்டிய, ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आप उनसे डरना या भागना उनसे अवश्य नहीं ஏன் है। என்று சொன்னால் क्योंकि இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் इस्राएल का राजा அவர் உங்கள் परमेश्वर நடுவில் அவர் वो இருக்கிறார். आपके बीच में है। அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். सर्वशक्तिमान है। அவர் பராக்கிரமசாலியாக, वो पराक्रमी அவர் परमेश्वर நிச்சயமாக निश्चय உங்களை விடுவித்து அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார். आपको छुड़ाकर आपकी रक्षा करेगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। சோதர நீங்க பவுல பார்க்கும் பொழுது आप जब पौलुस के बारे में அவன் देखेंगे, சவால் விட்டவன் சொல்லுகிறான். वो दावे से कहता அவன் है, என்ன சொல்லுகிறான்? क्या कहता है? தேவன் நமக்கு பட்சத்தில் இருந்தால் परमेश्वर अगर हमारे पक्ष में है, நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார்? हमारा विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता தேவனுடைய है? நடுவில் இருக்கும் பொழுது, अगर परमेश्वर हमारे बीच அவருடைய में है, வலது பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது अगर वो आपके दाहिने ओर है, உங்களுக்கு விரோதமாக तो आपके विरुद्ध யாரும் எழும்ப முடியாது. कोई उठ नहीं पाएंगे। எந்த மனுஷனுடைய சக்தி உங்களை தீங்கு உங்களை தொட முடியாது. कोई भी मनुष्य की शक्ति विपत्ति आपको छू नहीं ஏன் என்று सकेगी, சொன்னால் क्योंकि தேவனால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், आप परमेश्वर से चुने हुए हैं, தேவனால் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள். आप परमेश्वर से बुलाए गए। தேவனால் அழைக்கப்பட்டவருடைய மேல யார் குற்றம் சாட்டப்பட முடியும்? जो कोई परमेश्वर से बुलाहट में आए, कौन उसके ऊपर दोष लगा सकता है? அந்த தேவன் वही परमेश्वर உங்கள் நடுவில் அவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. आपके बीच में है करके कहा गया है। ஆமென். आमेन। அதனால इसलिए எந்த தீங்கும் உங்களை இந்த மாசத்துல தொடாது. कोई विपत्ति इसमें आपको नहीं இந்த छुएगा। வருஷம் முழுதும் தொடாது. ये वर्ष पूरा नहीं छुएगा। உலகம் முழுதும் தீங்கு இருக்கிறது. दुनिया पूरा विपत्ति से भरा है। உலகம் முழுதும் தீமைகள் காணப்படுகிறது. दुनिया पूरा बुराई से भरा है। எங்கு பார்த்தாலும் கொடூரங்கள், इधर भी देखो बहुत ही मुश्किल எங்கு है। பார்த்தாலும் பலவிதமான சோதரம் ஆபத்தான காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது. कहीं भी देखो संकट से भरा हुआ है। ஆனா ஆண்டவர் लेकिन உங்களை இந்த परमेश्वर மாசத்துல आपको इस महीने எல்லா में தீங்கிற்கும் விலக்கி காப்பா. आपको सारी बुराई से आपको बचाएगा। உங்களை எதுவும் அது நெருங்காது. आपको कोई विपत्ति नहीं छुएगी। எந்த தீங்க கூட कोई विपत्ति உங்க காதால் நீங்க கேட்க மாட்டீங்க. आपकी कानों से नहीं உங்க सुनोगे, கண்கள் நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. अपनी आंखों से नहीं देखोगे। ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் परमेश्वर सब அவர் விலக்கி போட்டு விட்டார். दूर कर दिया है। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அவர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, उसने तुम्हारे दंड को दूर அதாவது करके, நீங்க யோவான் சுவிசேஷம் युवाना रचित सुसमाचार 8ஆம் அதிகாரம் अध्याय 8 में அங்க देखेंगे 12 तो வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसमें 11 वचन में कहा அதற்கு है, அவள் तब இல்லை ஆண்டவரே नहीं என்றாள். नहीं परमेश्वर। இயேசு அவளை நோக்கி, यीशु ने कहा, நானும் मैं भी உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதில்லை. तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, நீ போ, जा இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். और फिर पाप न करना। இந்த வசனத்தை பாருங்க. इस वचन में देखेंगे ஒரு तो ஸ்திரியை यहाँ पे एक स्त्री को கையும் களவுமாக அவர்கள் பிடிக்கிறார்கள். उससे रंगे हाथ पकड़ा है। இவர் விபச்சார ஸ்திரீ என்று அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ये विभचारी स्त्री करके यहाँ पे देखे வேத हैं। பாரகரும் जो शास्त्री பரிசேரும் और फरीसी இயேசுவுக்கு நடுவே நிறுத்துகிறார்கள். यीशु के
पास बीच में आके खड़ा அப்ப करते हैं சொல்லுதாங்க और कहता है இந்த ஸ்திரிய इस स्त्री को விபச்சாரத்தில கையங்களும் பிடிக்கப்பட்டார்கள் व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। இப்படிப்பட்டவர்களை ऐसे लोगों को கல்லெறிந்து கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி पत्थरवाह करना चाहिए बोलकर மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்துல நம்ம கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள்। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है அதாவது எப்படியாவது किसी भी रीति से இவள் மேல குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி इसके ऊपर दोष लगाना चाहिए இவளை बोलकर கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லி इस पर पत्थरवाह करना करके என்று இவள் மேல் ஆக்கினை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி इस पर दंड की आज्ञा देना है बोलकर வேதபாரர்களும் जो शास्त्री பரிசேயர்களும் और फरीसी முற்பட்டார்கள்। वो लोग बीच में आए, ஆனால் இயேசு பாருங்க लेकिन यीशु को அவர் देखिए என்ன சொல்லுதாரு? वो क्या कहता है, சோதரம் அதன் மீது பாவம் செய்யாத, तू फिर पाप मत करना, உன்னை ஆக்கினை திருக்க மாட்டானா, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं இனி देता, நீ பாவம் செய்யாதே तू फिर पाप न करना என்று சொல்லி ऐसा कहकर அவளுக்கு வந்த ஆக்கினையை இயேசு விலக்கி போட்டு उस पर पड़ने वाली दंड को परमेश्वर ने दूर அவளுக்கு ஒரு करके பரலோக வழியை காட்டி उसको स्वर्ग का मार्ग दिखाकर இயேசு சொன்னாரு, यीशु ने कहा, நான் உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறேன், मैं संसार के लिए ज्योति हूँ, என்னை பின்பற்றுகிறவன் जो मेरे पीछे हो लेगा இருளில் நடவாமல் वो अंधकार में न அவன் चलेगा ஜீவ ஒளியை அடைந்திருக்கிறான்। परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर के நம்ம लोगों, மேல हम எத்தனை हमारे ऊपर ஆக்கினைகள் வந்து இருக்கிறது, कितने सारे दंड आए हैं, எத்தனை பேருக்கு தண்டனை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் நினைத்தார்கள், कितने लोग हमें दंड देना चाहिए करके ஆனால் सोचे थे, இயேசுவோ लेकिन यीशु அந்த मसीह ने ஆக்கினைகளை எல்லாவற்றையும் அகற்றி वो விட்டார்। सारा दंड को दूर किया, ஆக்கினைகளை அகற்றி वो सब दंड को दूर வருகிற करके தீங்கை आने वाले उस विपत्ति நமக்கு से வராதபடிக்கு हमें न आते நம்மள हुए விலக்கி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார்। हमें परमेश्वर ने बचाया இந்த है। மாசத்துல इस महीना யார் में உங்களை குற்றம் சாட்டம் வேண்டும் என்று துதித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள், कौन कौन आप पर दोष लगाने के लिए तड़प रहे யார் हैं, உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்கள், कौन कौन आपके विरोध में है। சில பேரை பாருங்க कुछ लोग को देखिए மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருப்பார்கள், दूसरे को उंगली दिखाते அவங்களை रहेंगे, எப்படியாவது குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள், किसी भी तरह उन्हें नीचा இது दिखाना அவங்களுடைய है, வேலையாக இருக்கும்। यही उनका काम है। ஆண்டவர் சொல்றாரு, लेकिन परमेश्वर कहता நீ है பாவம் செய்யாதே, अभी फिर से पाप न நான் करना, ஆக்கினையை தீர்க்க மாட்டேன் என்று मैं சொல்லி तुझे दंड के आगे नहीं அந்த दूंगा। ஸ்திரீயை उस स्त्री को மன்னித்து क्षमा அவளை कर ஆண்டவர் பரலோகத்தின் வழியாக அவர் போகும்படியா வழி காட்டினார்। स्वर्ग राज जाने का मार्ग परमेश्वर ने दिखाया। இன்றைக்கும் आज ஆண்டு भी உங்களுடைய வாழ்க்கையில परमेश्वर आपके இந்த जीवन में மாசத்துல इस महीने में भी உங்களுக்கு வந்த ஆக்கினையை आप पर पड़ने वाली दंड அவர் को அகற்றி விட்டார்। दूर किया है। சரியா? ठीक है, பிரைஸ் எல்லாம் हालेलुया। அப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இப்போ? तो अभी हम क्या देखने वाले கர்த்தர் हैं? நம்முடைய நடுவில் அவர் இருக்கிறார்। अगर परमेश्वर हमारे बीच में है तो சகரியா 2ஆம் அதிகாரம் जगरिया 2 அந்த अध्याय 10ஆம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது। 10वां वचन में कहा அங்க है, என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? क्या वचन कहा है? சீயோன் குமாரத்தியே, ए सियोन की पुत्री நீ கெம்பீரித்து பாடு, तू मगन हो, இதோ நான் வந்து देख मैं तेरे पास आकर நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் तेरे சொல்லுகிறார்। बीच में मैं निवास करूंगा அப்ப करके कहता है। ஆண்டவர் நம்முடைய நடுவில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் अगर परमेश्वर हमारे बीच में आना है तो முதலாவதாக पहला சியோன் குமாரத்தியாகிய நாம் கெம்பீரித்து பாட வேண்டுமா? सियोन की कुंवारी जो हम मगन होकर गीत गाना எப்படி है, கெம்பீரித்து பாட வேண்டும்? आनंद से गाना गाना है, கர்த்தரை துதினால பாட வேண்டும், परमेश्वर की स्तुति से गीत அவரை गाना நாம் है, ஆராதிக்க வேண்டும்। उसकी आराधना करना है। தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது, जब हम परमेश्वर की आराधना करते ஆண்டவரை हैं, துதிக்கும் பொழுது, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते அவருடைய हैं, நாமத்தை உயர்த்தும் பொழுது जब उसकी नाम की ऊंचा करते हैं, இருதயத்துல हमारे हृदय ஒரு में ஆனந்தம், एक आनंद होती है, இருதயத்துல ஒரு கெம்பீரிப்பு இருக்க வேண்டும்। हृदय में एक मगन होना நாம் அப்படி चाहिए। ஆராதிக்கும் பொழுது, जब हम ऐसा आराधना அவரை करेंगे, கெம்பீரித்து பாடும் பொழுது उसकी मगन गाएंगे, அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन में இதோ देखा நான் है, வருவேன், मैं तुम्हारे बीच உங்கள் आऊंगा, நடுவில் நான் வாசம் பண்ண வேண்டும் கர்த்தர் मैं சொல்லுகிறார்। तुम्हारे बीच में वास करूंगा करके அப்ப कहता है। நடுவில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் अगर तुम्हारे बीच में वास करना நீங்க है तो கெம்பீரித்து நீங்க பாட வேண்டும்। आपको मगन होकर गाना चाहिए। Praise the Lord. हालेलुया। உங்க கவலைகளை மறந்து, आपके चिंताओं को உங்க भूलकर, துக்கங்களை மறந்து, आपका दुख को உங்க भूलकर, வேதனைகளை மறந்து, आपका दर्द को உங்க भूलकर, உபத்திரவங்களை மறந்து, आपका तकलीफ को உங்க भूलकर, பாடு எல்லாவற்றையும் மறந்து, आपका सारी तकलीफ நீ को ஒன்று भूलकर, மாத்திரம் நீங்க செய்ய வேண்டும்। आपको एक ही कार्य உங்க करना है। நடுவில் கர்த்தர் வாசம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார்। अब परमेश्वर ने कह दिया है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में वास அப்ப நீங்க करेगा, கெம்பீரித்து நீங்க பாட வேண்டும்। आपको आनंद से गाना है। அதைத்தான் தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता கர்த்தரை है, காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன், परमेश्वर को मैं हर समय स्तुति அவர் करूंगा துதி और उसकी स्तुति எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும்। निरंतर मेरे मुख में
भी होगी, எந்த சூழ்நிலையிலும் कोई भी परिस्थिति में, எப்பேற்பட்டதான உபத்திரங்களிலும் कोई भी परिस्थिति में தேவனை துதிப்பதற்கு நாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें जो आदत लगाना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। கெம்பீரித்து பாட வேண்டுமா? हमें आनंद से गाना है, நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு கெம்பீரிப்பு இருக்க வேண்டும். हमारा मुंह से ऊंचा स्वर निकलना அப்படி है। பாடும் பொழுது जब ऐसा गीत गाएंगे, நம்முடைய ஆண்டவராகிய கர்த்தர் हमारा நம்முடைய परमेश्वर நடுவில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறவராக காணப்படுகிறார். हमारे बीच में वास करता है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க கவலையோடு கூட அல்ல, आप चिंतित के साथ நீங்கள் नहीं, துக்கத்தோடு கூட அல்ல, आप दुख के साथ नहीं, தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, கம்பீரமாக நீங்க ஆராதிக்க आप வேண்டும். मगन होकर आराधना करना நீங்கள் चाहिए। ஆராதிக்க ஆராதிக்க आप जितना आराधना உங்க करोगे, கவலைகள் மாறும், आपका जो चिंता दूर உங்க होगी, பாரங்கள் மாறும். आपकी बोझ हटेगा। ஆண்டவர் உங்கள் நடுவில் வாசம் பண்ணி परमेश्वर आपके बीच वास உங்களுடைய எல்லா करके வித உபத்திரங்களையும் உங்களை விலக்கி மீட்டு आपके सारे उपद्रव को दूर உங்களை करके அவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். आपको आशीष करता அவர் है। உங்கள் நடுவில் வந்து आपका बीच में உங்களுக்கு आकर வருகிறதான आपको आने वाले தீங்கை நீங்க காணாதபடியாக कोई बुराई आपको ना இந்த देखते हुए மாசத்துல அவர் அற்புதங்களை அவர் इस செய்வார். महीना परमेश्वर आपको चमत्कार काम करेगा। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நடுவில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் परमेश्वर अगर हमारे बीच में वास என்ன करना செய்ய है வேண்டுமா? तो क्या करना चाहिए? நாம் அவரை கெம்பீரித்து நம்ம பாட வேண்டும். हमें ऊंचे स्वर से आनंद से गाना சும்மா चाहिए, அழுதுகிட்டு இல்ல. रोते रोते नहीं। சில கையை தட்டுவாங்க பாத்தீங்களா? कुछ लोग ताली ऐसा बजाते ஆமா, हैं, அந்த கையை தட்டாம இருக்கலாம் அதுல அவங்க. नहीं तो ताली बजाने बगैर ही रह सकते சும்மா हैं, இருக்கலாம் பேசாம. ऐसे चुपचाप बैठ सकते கையை हैं। தட்டுறத பார்த்தா நம்மளுக்கு தூக்கம் வந்துரும். उनका ताली की आवाज सुन के हमें ஆமா. नींद आ जाती அவங்க है। அவங்க அப்படியே தான் கை தட்டுவாங்க. ऐसे धीरे धीरे தேவனை बजाते हैं। ஆராதிக்கும் பொழுது जब परमेश्वर की आराधना करते உற்சாக समय பலியோடு கூட उत्साहित के साथ, முழு மனதோடு கூட पूरे मन के முழு साथ, இருதயத்தோடு கூட पूरे दिल के இந்த साथ தேவனை நம்ம ஆராதிக்க वो வேண்டும். परमेश्वर की आराधना நம்முடைய करना இருதயம் चाहिए, கெம்பீரித்து நம்ம பாட வேண்டும். हमारा मन से गाना चाहिए। அப்பொழுது तब அவர் நடுவில் அவர் வாசம் वो பண்ணுவார். हमारे बीच में निवास करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவது நம்ம பார்க்கலாமா? दूसरा हम देखें, ஆண்டவர் சொல்லுதாரு, परमेश्वर कहता है, அவரே சொல்லுதாரு, वही कहता है, வாசஸ்தலத்தை நான் ஸ்தாபிப்பேன், मैं निवास स्थान को बनाएगा உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன். और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। இந்த வசனம் வாசிக்கலாமா? ये वचन पढ़ेंगे, லேவியராகமம் लेवी நீங்க व्यवस्था 26 அதிகாரம் 26 अध्याय நீங்கள் 11 வாசிக்கும் பொழுது 11 और 12 वचन में पढ़ते அந்த समय ஆண்டவரே சொல்லுதாரு, परमेश्वर खुद कहता है, உங்கள் நடுவிலே मैं तुम्हारे என் बीच வாசஸ்தலத்தை நான் ஸ்தாபிப்பேன். अपना निवास स्थान बनाओ நான் रखूंगा, உங்கள் நடுவிலே உலாவி मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा உங்கள் करूंगा தேவனாய் இருப்பேன். और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। கர்த்தருடைய அன்பும் परमेश्वर का प्रेम, அவரிடத்தில் வழிநடத்தில் ஆச்சரியமானவைகள். उसकी मार्गदर्शक बड़ी आश्चर्य அவர் है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மத்தியில वो इस्राएल लोगों के बीच में அவர் வாசம் பண்ணவர் விரும்புகிறார். वो निवास करना चाहता है। ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலாகிய நம்முடைய வீடுகளில आत्मिक इस्राएल हमारे घर पर, உங்க மத்தியில आपके बीच में அவர் வாசம் பண்ணவர் விரும்புகிறார். वो निवास करना चाहता அவர் है। வானத்தையும் பூமி அவர் உண்டாக்கினவர். वो आकाश और पृथ्वी को बनाया அவர் प्रभु, சர்வ வல்லமையுள்ளவர் தேவன். அவர் सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर பூமியில வந்து इस पृथ्वी में அது आकर வனாந்தரத்துல தங்க விரும்புகிறார். वो भी जंगल जैसे स्थान में रहना चाहता है। அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इस्राएल लोग அந்த வனாந்தர பாதையில போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள். जंगल के मार्ग में वो लोग चल रहा அப்ப है। பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்லுதாரு, परमेश्वर இந்த कहता है, வனாந்தரமான வாழ்க்கையில इस जंगल के जीवन में இந்த भी, ஒன்றுமில்லாத வாழ்க்கையில इस कुछ भी नहीं ऐसे जीवन இந்த में भी, சோதரம் பஞ்சமான வாழ்க்கையில इस अकाल के जीवन में भी வனாந்தரத்தை யாருமே விரும்ப மாட்டார்கள். जंगल को कोई भी नहीं चाहेंगे, வனாந்தரத்தை வெறுப்பார்கள். जंगल को सब लोग नफरत करते ஆனா हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறாரு, लेकिन परमेश्वर इस्राएल लोग से இந்த कहता है, வனாந்தரத்துல इसी जंगल நான் में தங்க நான் விரும்புகிறேன். मैं रहना चाहता என் हूँ, வாசஸ்தலத்தை நான் ஸ்தாபிக்கிறேன். मैं अपना निवास स्थान को बनाना चाहता யோசித்து हूँ। பாருங்கள், जरा सोच के எவ்வளவு देखिए, பெரிய ஆண்டவர் அவர். कितना बड़ा அந்த परमेश्वर, சராசர உருவாக்கினவர் पूरे संसार को सृष्टि किया எல்லா परमेश्वर, கிரியைகளையும் सारी क्रियाओं தன்னுடைய को கைகளுக்குள்ள அடக்கி வைத்திருக்கிறவர். अपने हाथों में रखा அவர் परमेश्वर। சொல்லுகிறாரு, वह कहता உங்கள் है, நடுவில் நான் வாசஸ்தலம் ஸ்தாபிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान எவ்வளவு रखूंगा। ஆச்சரியமான காரியம் அது. कितना अच्छा परमेश्वर है। யாத்திரை 25 அதிகாரம் निर्गमन 25 अध्याय 8 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, 8 में कहा है, அவர்கள் நடுவில் வாசம் பண்ண मैं उनके बीच में वास करने के எனக்கு ஒரு लिए பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவாள் என்று சொன்னார். मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए रखना। இங்க ஆண்டவர் சொல்லுதாரு, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, நான் ஸ்தாபிப்பேன், मैं आके रुकूंगा, உங்க நடுவில் நான் வாசம் பண்ணுவேன். मैं तुम्हारे निवास स्थान में ஒரு आऊंगा। கட்டளை கொடுக்கிறாரு, परमेश्वर
एक आज्ञा देता है, நான் உங்க நடுவில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் मुझे अगर तुम्हारे निवास स्थान ஒரு करना है तो பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நீங்க உண்டாக்க வேண்டும். मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए கர்த்தர் रखो। மோசே பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर मूसा से कहा, அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய என்ன வேலை என்று சொன்னால் इस्राएल लोगों की क्या काम थी? ஆண்டவர் சொன்னாரு, परमेश्वर ने कहा, அத நான் வாசம் பண்ண मुझे रहने के நீங்க लिए ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நீங்க உண்டாக்க வேண்டும். एक पवित्र स्थान मेरे लिए बनाओ। ஆசாரிப்பு கூடாரத்தோடு கூட जो याजक के तंबुओं அந்த में ஆலயத்தை கட்டினால் उस भवन को बांधा, கர்த்தர் மகிழ்ச்சியோடு கூட परमेश्वर आनंद के அவர் साथ அங்கு வந்து வாசம் பண்ணுவார். परमेश्वर वहां पे आके निवास करता பாருங்க, है। கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை परमेश्वर इस्राएल लोगों को, உங்களை आपको நேசித்தது ஆச்சரியமா இருக்கிறது. प्रेम किया, बड़ी आश्चर्य அவர் है। நம்மள வாசம் பண்ண वो हमारे अंदर निवास करने के लिए நம்மிடத்துல என்னத்தை அவர் பார்க்கிறார், हमसे वो क्या चाहता है, என்னத்தை அவர் நம்மிடத்துல கண்டு இருக்கிறார். वो हमें क्या देखा है। அவர் சொல்லுதாரு, वो कहता है, நான் உங்களுடைய வாசம் பண்ண விரும்புகிறேன். मैं तुम्हारे बीच में निवास होना चाहता இஸ்ரவேல் हूँ। ஜனங்களை பாருங்க, इस्राएल लोगों को देखिए, அவர்கள் வண்ணாங்க கழுத்துள்ளா காணப்பட்டார்கள், वे लोग जो सीधे गर्दन वाले थे, முறுமுறுத்து கொண்டிருந்தார்கள், बार बार कुड़कुड़ाते थे, மோசேக்கும் ஆரோனுக்கு விரோதமாக பேசினார்கள், मूसा और आरोन के विरुद्ध बकबक करने அவர்களை लगे, கல்லெறிய கூட அவர்கள் சோத்திரம் துணிந்தார்கள். उस पर लोगों के ऊपर पत्थरवाह करने के लिए भी तैयार அது हो गए। மாத்திரமல்ல, नहीं, விக்கிரக ஆராதனை செய்யும்படியாக मूर्तों को बनाने के लिए பொன் கன்று குட்டிகளை உண்டாக்கி सोने के बछड़ा बनाकर, இவைகள் தான் यही எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்த தேவம் என்று சொன்னார்கள். मिस्र से भेजा हुआ हमारा परमेश्वर தேவனை है। துக்கப்படுத்தினார்கள். परमेश्वर को दुखित பாருங்கள், किए। தேவனை அமாராக சோதர அவர்கள் மதிக்காதபடிக்கு परमेश्वर का वो लोग जो इज्जत न देते இந்த हुए தேவத்தை உண்டாக்கி ऐसी मूर्तों को இதுதான் बनाकर எங்களை நடத்து என்று சொல்லி यही हमें मार्ग அவர்கள் चलाने वाला சொன்னார்கள். है, वो कहते हैं। ஆனால் கர்த்தர் பாருங்க, लेकिन परमेश्वर அவர்களை நேசித்து उनसे प्रेम रखकर மன்னாவையும் उनको मन्ना காடைகளையும் கொடுத்து और उन्हें जो बटे देकर பகலிலே வழி நடத்த மேக ஸ்தம்பங்களையும் और जो दोपहर चलने के लिए उन्हें मेह की गंधक இஸ்ரவேலே வழி அக்கினி ஸ்தம்பங்களையும் और रात को चलने वाली आग की खंभा கட்டளையிட்டார். परमेश्वर ने दिया। கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர். परमेश्वर कितना अच्छे हैं। ஆண்டவர் பாருங்க, परमेश्वर देखिए, நீங்க இப்படி நீங்க பரிசுத்தத்தை உண்டாக்கும் பொழுது अगर आप ऐसा पवित्र स्थान உங்கள் बनाएंगे, நடுவில் வாசம் என்று சொல்ல இருக்கிறார். परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बीच निवास करूंगा। கர்த்தர் நம்மில் வாசம் பண்ணும் பொழுது परमेश्वर अगर हमारे बीच निवास நாம் करता எதற்கும் है, பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. हमें किसी भी चीज से डरना अवश्य नहीं है। மந்திரவாதிகளை கண்டு பயப்பட அவசியம் இல்லை. जो जादू टोना करने वाले से डरना अवश्य नहीं குட்டி है। சாத்தானை பார்த்து பயப்பட அவசியம் இல்லை. छोटे शैतान को देख के डरना अवश्य नहीं குட்டி है। சாத்தான உங்களுக்கு தெரியுமா? छोटे शैतान आपको है पता है? நான் அதை பார்த்து இருக்கிறேன். उससे हमने देखा है। ஆமென். आमीन। நான் ஒரு முறை एक बार ட்ரெயின்ல நான் சோத்ரா என்ன பார்வைக்கு நான் தமிழ்நாட்டுக்கு பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு இருந்தேன். तमिलनाडु में सफर कर रहे थे। மூன்றாவது அத மேல பகுதியில படுத்து கொண்டிருந்த இரவு நேரத்துல अपर सीट में जो रात को सो रहे थे, படுத்து கொண்டு தூங்கி கொண்டு இருந்தேன். ऐसे सो रहे थे। பாருங்க, சோத்ரம் டைம் எனக்கு தெரியல, समय इतना याद नहीं है। ஆனா ஒரு ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி छोटे से बच्चे के रूप ஒரு में உருவத்தை நான் பார்க்கிறேன். एक रूप को हमने देखा। அந்த உருவமானது वो जो रूप है அது தலைமாட்டுல வந்து वो सिर के पर அது आकर அழுது கொண்டே இருக்கிறது. वो रोते बैठा है। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அதை பார்த்து நான் விழித்துக் கொண்டேன். उसे देख के जाग गया। நான் அறிந்து கொண்டேன், हम जान लिया இது ஒரு குட்டி பிசாசு. एक छोटा शैतान है। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அதட்டி ஜெபித்து उसे விட்டு डांट कर प्रार्थना நான் करने के படுத்து बाद தூங்கி விட்டேன். फिर सो गए। குட்டி சாத்தானும் உண்டு. छोटे शैतान भी है। ஆமென். हालेलुया। ஒரு பாட்டு கூட படிப்பாங்க நம்ம சின்ன பிள்ளைகள். बचपन में हम लोग गीत भी गाते थे। சோத்ரா, அதாவது எனக்கு பாட புரி தெரியல, वो अभी थोड़ा भूल गए हैं। ஆனா பாருங்க, लेकिन குட்டி देखिए, சாத்தானுக்கு நம்ம பயப்பட அவசியம் இல்லை. छोटे छोटे भूत से डरना अवश्य नहीं பெரிய है। சாத்தானுக்கு பயப்பட அவசியம் இல்லை. बड़े भूत से भी डरना अवश्य नहीं है। வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन कहता है உலகத்தில் இருப்பவன் இல்லை, संसार में जो है உங்களில் இருப்பவர் அவர் பெரியவர். आपके अंदर जो है वो बड़ा है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மிடத்தை ஒரு வாசம் वो பண்ணுவதற்கு हमारे अंदर निवास ஒரு करने के लिए பரிசுத்த தலத்தை அவர் உண்டாக்கும்படியாக நம்மை எதிர்பார்க்கிறார். पवित्र स्थान के लिए वो तैयार होना चाहता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। வெளிப்படுத்த 21:3 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, प्रकाशित वाक्य जो कहा गया है, இதோ மனுஷனிடத்தில் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் இருக்கிறது, मनुष्य को परमेश्वर का निवास स्थान है। அவரிடத்தில் அவர் வாசமாய் இருப்பார், उनके बीच में वो निवास रहेगा। அவர்களும் वे लोग भी அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள். उनके लोग ठहरेंगे। தேவன் தாமே परमेश्वर அவர்கள் கூட இருந்து उनके संग रहेगा। அவர்களை நடத்துவார். उनको वो
அவருடைய चलाएगा, தேவனாய் இருப்பார் परमेश्वर उनका परमेश्वर என்று ठहरेगा, சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ऐसा कहा गया அப்ப है। நம்ம ரெண்டாவது பார்த்தோம், நம்ம दूसरा हमने देखा, ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर ஒரு कहता है, வாசஸ்தலத்தை நான் ஸ்தாபிப்பேன், मैं अपने लिए एक निवास स्थान நான் बनाऊंगा, உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி मैं இருக்கிறார். तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। மூன்றாவதா பார்க்கலாமா? तीसरा हम देखें, சோதர மத்தேயு சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 18ஆம் அதிகாரம் 18 अध्याय 20 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 20 में कहा है, 2 பேராவது 2 जन 3 பேராவது या 3 जन நாம் எங்கே கூடியிருக்கிறோ जहाँ तुम इकट्ठे அவர் रहेंगे, நடுவில் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லி उनके இருக்கிறார். बीच में मैं हूँ करके எங்க कहता है। இருப்பாரா? कहाँ पर है? 2 பேர் 3 பேர் கூடும்போது जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर அவர்கள் इकट्ठे நடுவில் நான் होते हैं, இருப்பேன். वहाँ उनके बीच में रहता ஆண்டவர் है। என்ன சொல்றாருன்னா, परमेश्वर क्या कहता நீங்க है? 2 பேராவது आप 2 जन 3 பேராவது या 3 जन என் நாமத்தினால मेरे नाम पर எதை கேட்டாலும் जो कुछ அதை मांगोगे நான் செய்வேன். वो मैं करूँगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன? परमेश्वर की इच्छा क्या है? குடும்பம் ஜெபிக்க வேண்டும். परिवार मिलकर प्रार्थना करना குடும்ப चाहिए। ஜெபம் வீட்டிலே நடத்தப்பட வேண்டும். परिवार प्रार्थना अवश्य है। குடும்பம் என்று சொன்னால் परिवार यानी கணவன், पति, மனைவி, पत्नी, பிள்ளைகள், बच्चे, இது என்னதுதான் குடும்பம். ये मिलके परिवार அப்ப होता இவர்கள் है। எல்லாம் சோதரம் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது, ये सब मिलके प्रार्थना करते समय, அவரிடத்துல தேவ சமூகத்துல கேட்கும் பொழுது, जब वो परमेश्वर के पास आके वो लोग मांगते समय, அந்த காரியத்தை वो कार्य को அவர் செய்யும்படியாக करने के लिए அவர் நடுவில் அவர் கடந்து वो வருகிறவர். बीच में आता है। ஹalleluya. हालेलुया। 38 வருஷமா 38 वर्ष அந்த से பெதஸ்தா குளத்தின் அருகில் படுத்திருந்ததான सिद्धा की उस बगल में सोने அந்த वाला திமிர்வாதனை தேடி ஆண்டவர் கடந்து वो சென்றார். लकवा बीमारी के पास परमेश्वर गया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर உயிர்த்தெழுந்த பிறகு जी उठने के बाद இயேசுவை காணும்படியாக यीशु को देखने के लिए சீசர்கள் வாஞ்சித்தார்கள். शिष्य लोग ने चाहा। எம்மாவூருக்கு போன 2 சீசர்கள் அவர்கள் போய் கொண்டிருந்தார்கள். इम्माउस में जाने वाले 2 शिष्य जा रहे ஆனால் थे। மூன்றாவது ஆளாக तीसरा व्यक्ति இயேசு அவர்கள் மத்தியிலே கடந்து வந்து यीशु उनके बीच में जाकर வேதவசனம் அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்து वचन उनको बतलाकर அவருடைய உள்ளமானது उनका हृदय जो கொழுந்து था விட்டு எரிந்தது நம்ம பார்க்க वो முடிகிறது. उछलने लगा करके हम देखते हैं। பிரைஸ் எல்லாம். हालेलुया। 2 பேரு 2 जन 3 பேரு ஜெபிக்கும் பொழுது 3 जन प्रार्थना करते கர்த்தர் அவர் समय நடுவில் இருக்கன்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. परमेश्वर उनके बीच में है। ஆமென். आमेन। குடும்பமாக நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். परिवार मिलकर प्रार्थना ஆலயமா कीजिए। ஆலயத்திலிருந்து நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். भवन में मिलकर प्रार्थना करना है। வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन में कहा है, உங்களில் 2 பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளும் எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் आप में से 2 जन जो चाहिए वो परमेश्वर से मांगते समय பூமியில் ஒருமனப்பட்டு இருந்தால் पृथ्वी पर अगर एक मन है பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவினால் तो स्वर्ग में रहने वाले पिता அது से அவர்களுக்கு உண்டாகும். वो उन्हें हो जाएगा। பிரைஸ் எல்லாம். हालेलुया। ஹalleluya. அது हालेलुया। பரலோகத்தில் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டு वो இருக்கிறது. स्वर्ग से पूरा हो जाएगा। 2 பேர் இருக்கும் பொழுது, जब 2 जन है 3 பேர் இருக்கும் பொழுது या 3 जन அவருடைய है வாழ்க்கையில ஒரு மன ஆவி இருக்க வேண்டும். उनके जीवन में एकता होना அவர்கள் चाहिए। இருப்பென்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். उनके बीच में मैं हूँ करके कहता தேவனுடைய है। பிள்ளைகளே, तो परमेश्वर की கர்த்தர் जनों, நடுவில் இருக்கிறபடினால परमेश्वर आपके बीच में அவர் है, உங்களுக்கு इसलिए வந்ததான आपके ऊपर गिरने वाले தீங்கை सारे நீங்க विपत्ति को காணாதபடிக்கு आप ना देखते அதை அவர் हुए விலக்கி போட்டு वो விட்டார். दूर कर दिया। சரியா? ठीक है। சரி, இதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்வது ये நல்லதுதான். सब कर रहा है वो अच्छा ஆனா है, என்ன நம்ம எதிர்பார்க்கிறார்? लेकिन वो हमसे क्या चाहता நம்முடைய है? நடுவில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் अगर वो हमारे बीच में निवास அவர் करना என்ன है तो எதிர்பார்க்கிறார்? वो हमसे क्या அங்கு चाहता है? சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसमें कहा गया है உபாகமும் व्यवस्था विवरण 23ஆம் அதிகாரம் 23 अध्याय அங்க 14 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 14 वचन का உன் है, தேவனாகிய கர்த்தர் तेरा परमेश्वर உன்னை यहोवा ரட்சிக்கவும் तुझे बचाने உன் சத்துருக்களை உனக்கு ஒப்பு கொடுக்கவும் और तेरा शत्रु को तुझ पर உன் हरवाने को பாளையத்திற்கு உலாவிக் கொண்டு இருக்கிறார். तेरी छावनी के मध्य घूमता रहता ஆகையால் इसलिए அவரிடத்தில் அசுசியான காரியங்களை கண்டு உன்னை விட்டு போகாதபடிக்கு तेरी मध्य कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे दूर न உன் जाते பாளையம் சுத்தமா இருக்க கடவது. तेरी छावनी पवित्र रहना அவன் चाहिए। நடுவிலே வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார். अगर हमारे मध्य में निवास करना உலாவ चाहते வேண்டும் हो, என்று சொன்னார். हमारे मध्य में निवास करना எப்படி है तो இருக்க வேண்டுமா? कैसा रहना चाहिए? நம்முடைய பாளையம், हमारी छावनी, நாம் இருக்கிற வீடு, हम रहने वाले घर, வசிக்கிற இடம் हम रहने वाले அங்கு स्थान சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். वहाँ पे शुद्ध होना चाहिए। ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். एक पवित्र जीवन को चाहता है। சத்துருக்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். अगर शत्रुओं को हरवाना है அவருடைய तो
ஆலயத்துல உலா வேண்டும் என்று சொன்னார். हमारे छावनी में घूमना है அவர் तो என்ன சொல்லுகிறார்? कहता உங்க है வீடானது, आपका घर जो है, அதாவது நீங்க வசிக்கிற இடமானது आप रहने वाले स्थान அது जो है சுத்தமாக இருக்க वो வேண்டும். शुद्ध रहना अवश्य है। அங்கங்கே பீடி செல்வ போட்டு கடக்க கூடாது. यहाँ वहाँ जो बीड़ी का टुकड़ा पड़ा रहना नहीं கட்ட चाहिए, பீடி அங்கங்க வீட்ல கடக்க கூடாது. टुकड़ा बीड़ी पड़ा रहना नहीं ஆமா, चाहिए, அங்க எங்கேயும் துணிமணி அங்க கடக்க கூடாது. यहाँ वहाँ ऐसा वैसे कपड़ा नहीं पड़ा रहना நம்முடைய चाहिए। வீடானது हमारे घर ஒரு பரிசுத்தமான வீடாக, एक पवित्र घर, நம்முடைய வீடானது हमारा घर ஆண்டவர் சோத்திரம் அசைவாடுகிற வீடாக, परमेश्वर मंडराने वाला அது घर, பரிசுத்தமாக அது காணப்பட वो வேண்டும். पवित्र से रहना चाहिए। பிரைஸ் எல்லாம் Hallelujah. பரிசுத்தமாக இருக்கும் பொழுது जब तुम पवित्र रहोगे, ஆண்டவர் பாருங்க परमेश्वर நம்முடைய வீட்டில் அவர் வாசம் பண்ணுவார். हमारे बीच में वो निवास நம்முடைய करेगा। அசுத்தத்தை கண்டு, हमारे अशुद्ध को வீட்டின் देखकर, ஒழுங்கினத்தை கண்டு, हमारे घर के जो बेडोल वस्तु को சிலவங்க देखकर, வீட்டு படுக்கையின் அந்த தலைவணி கீழே कुछ लोग के जो तकिए के नीचे தம்பாக்கு இருக்கிறத பார்த்திருக்கலாம் நீங்க. तंबाकू पड़े हुए देखे होंगे। சிலது போதைக்கு அடிமையா இருப்பாங்க, அதை வச்சிருப்பாங்க. कुछ लोग नशा के आदत होगी, नशे இல்ல में சிகரெட் பாக்கெட்டை வச்சிருக்காங்க. सिगरेट के बॉक्स रखे होंगे। இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், आज अब हमेशा அந்த आपसे कहता है அசுத்தமான காரியத்தை अशुद्ध कार्यों को தூக்க வெளியே போடும் பொழுது उठाकर फेंकेंगे, அவர் உங்க வீட்டுல ஒரு வசை वो வாடுவார். आपके बीच में निवास உங்க வீட்டுக்கு करेगा, அவர் கடந்து வருவார். आपका बीच में वो உங்க आएगा। வீடு கர்த்தருடைய வசனங்களால நிறைந்திருக்க வேண்டும். आपका घर में परमेश्वर वचन से भरना அவருடைய चाहिए, பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்திருக்கப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा से भरा होना அவர் நம்மை चाहिए, விட்டு தூரம் वो போகாதபடிக்கு हमसे दूर न நம்முடைய जाते பாளையம் हुए எங்கும் சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். हमारी छावनी पूरा पवित्र होना चाहिए। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க, परमेश्वर यीशु मसीह को எருசலேமின் देखिए, தேவாலயத்தை கடந்து போகும் பொழுது यरूशलेम भवन में जाते समय அது என்ன முதலாக செய்தார் என்று சொன்னால், पहला उन्होंने क्या அந்த किया, ஆலயத்தை சுத்திகரித்தார். वो भवन को उन्होंने शुद्ध किया, அந்த ஆலயத்தை சுத்திகரித்து भवन को शुद्ध அந்த करके ஆலயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தினார். भवन को उन्होंने पवित्र இது किया। தேவனுடைய வீடு என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ये घर जो है परमेश्वर का घर है, நீங்க கல்லர் குகையாக்கின்றவர் சொன்னார். तुमने इसे डाकुओं का कुआ बना அவர்களை दिए, விரட்டினார், उन्हें परमेश्वर ने भगा दिया, சுத்தப்படுத்தினார். उन्हें शुद्ध किया। இன்றைக்கும் आज भी ஆண்டவர் நம்முடைய கூடாரங்களில் परमेश्वर हमारे परिवार அவர் में வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று वो சொன்னார். निवास करना है, அவர் तो என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? क्या चाहता है, நம்முடைய பாளையமானது, हमारे जो छावनी நம்முடைய है, கூடாரமானது हमारे घर जो है எப்படி இருக்கணுமா? कैसा रहना அது चाहिए? சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். शुद्ध रहना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். शुद्ध रहना चाहिए। பரிசுத்தம் இல்லாமல் बिना पवित्र से ஒருவனும் தேவனை ஆராதிக்க முடியாது. कोई भी परमेश्वर को आराधना नहीं कर ஆண்டவர் सकते। பரிசுத்தமுள்ள தேவன். परमेश्वर पवित्र है। ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर क्या कहता அவர் है, நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். वो हमारे बीच में निवास அப்ப करता है। நாம் யார் என்றவர் நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். हम कौन ये जान लेना चाहिए। 1 கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों 3ஆம் அதிகாரம் अध्याय 3 16-15 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 16 और 17 वचन में कहा நீங்கள் है, தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்றும் क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर हो தேவனுடைய ஆவி உங்கள் வாசமா இருக்குன்னு அறியாது இருக்கிறீர்களா? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट அவனை करेगा தேவன் கெடுப்பார். तो परमेश्वर उसे नष्ट தேவனுடைய करेगा, ஆலயம் क्योंकि परमेश्वर का मंदिर பரிசுத்தமா இருக்கிறது. पवित्र है நீங்களே அந்த और ஆலயம். वो तुम हो। ஆலயம் எது? मंदिर कौन है? நீங்களே அந்த ஆலயம். हम ही वो मंदिर है। உங்களுடைய சரீரமானது हमारा शरीर அது தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது. परमेश्वर का मंदिर है। தேவனுடைய ஆவி உங்களுடைய வாசமா இருக்கிற அறியீர்களா? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर அநேகருக்கு अनेक लोगों को ஒரு ஞானம் இல்லை, इस ज्ञान नहीं है, ஒரு புத்தி இல்லை. एक बुद्धि नहीं இந்த है, சரீரம் நம்முடைய சரீரம் அல்ல, ये शरीर हमारा नहीं இது है, தேவனுடைய ஆலயம். ये परमेश्वर का இந்த मंदिर है। தேவனுடைய ஆலயத்துல ये परमेश्वर का मंदिर में காதுல குத்துதாங்க, जो कान में टोचते हैं, காதுல என்னெல்லாம தொங்கப்படுதாங்க. कान में क्या क्या लंबा लंबा சோதரம் लगाते हैं, நீளமா இருக்குது. बहुत बड़ा लंबा சிலவங்களை रहता है। பார்த்தாலே பழைய காலத்து பாட்டி போட்ட மாதிரி कुछ लोग को देखते समय पुराने जो अपनी दादी माँ लोग அவன் அப்படி पहनते थे போட்டு தொங்கிட்டாலே தாங்க. उतना बड़े बड़े डाल के घूमते சில थे। பேரங்க பாத்தீங்கன்னா कुछ लोग को இந்த देखेंगे இதுல எதுவும் குத்துதாங்க, अपने जो आईब्रो में कुछ लगाते हैं, என்னெல்லாமோ செய்தார்கள். क्या क्या करते हैं। சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா कुछ लोग को देखेंगे तो சரீரத்துல अपने शरीर में எவளுடைய பேரோ किसी का तो नाम இல்ல को எவனுடைய பேரோ या किसी का नाम को குத்திட்டு பைத்தியமா அலைதான். वो टैटू लगा के पागल जैसा घूमते அவன் हैं। அவனும் ஆலயத்துக்கு வரான், वो भी भवन में आता है, அவனும் ஆலயத்துல வந்து ஜெபிக்கிறான். वो भी भवन में आके प्रार्थना करता ஆண்டவரே, है, प्रभु जी நான் என்னுடைய கையில मेरे हाथ में இந்த இந்த பேர் எழுதி வச்சிருக்கிறேனே, जिसका भी नाम मैंने लिखा எனக்கு है, இவள் எதிர்காலத்துல வேணும், ये मेरे भविष्य में चाहिए, இவளுக்கு நான் திருமணம் பண்ணுவேன், इसी से मैं विवाह करूंगा, இவன் எனக்கு பிடித்து இருக்கிறாள். यही मुझे बहुत पसंद है। அவன் ஆலயத்துக்கு வரான், ये क्यों भवन में आता அவன் है? வாஞ்சை वो நிறைவேற்றுவதற்கு अपनी इच्छा पूरी करने, அந்த அதாண்டு விரும்பவில்லை. लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता है। இன்னைக்கு டேட்டு என்று சொல்லுவார்கள். आज टैटू कहते हैं। நான் ஒரு பையனுடைய தான சோதரம்
ஒரு டேட்டுவை நான் பார்த்தேன். एक लड़का का टैटू देखा था। அவன் வந்து वो தன்னுடைய கையில अपने हाथ में அதாவது ஒரு தாயும் एक माँ ஒரு குழந்தையுமா இருக்கிற அந்த அந்த காட்சியை போட்டிருக்க குத்தி இருக்கிறான். एक माँ अपने बच्चों को संभालते हुए वो टैटू लगाया। ஏப்பா இப்படி செய்தான் கேட்கும்போது तो ऐसा टैटू क्यों लगाया? அவன் சொல்லுதான், वो कहता है நான் எங்க அம்மா ரொம்ப நேசிக்கிறேன். मैं मेरे माँ से बहुत प्यार करता हूँ। எப்படி பையன் பாத்தீங்களா? कितना अच्छा बेटा है, ரொம்ப நல்லதுதான். बहुत अच्छा है। அப்புறம் நேசித்தா என்று சொன்னால் अगर उससे प्यार करते நான் என்ன சொல்லுதேனா, हम क्या करते? உங்க அம்மா தலையை தூக்கி வச்சு அம்மா அப்பனா நீ तो अपने माँ को सिर के ऊपर उठाकर பாருங்க बोलना பிள்ளைகள் चाहिए। எல்லாமே செய்கிறார்கள். बच्चे लोग क्या क्या गलत करते இது हैं। தேவனுடைய ஆலயம், ये परमेश्वर का मंदिर இது है, தேவனுடைய சரீரம். ये परमेश्वर का शरीर இதை है। ஒருவன் கெடுத்தால் इसे कोई नष्ट करे, கர்த்தர் அவனை கெடுப்பார். परमेश्वर उससे भी नष्ट करता நம்மத்துல है। உலா வேண்டும் என்று சொன்னார், अगर हमारे बीच में मंडराना है, நம்மில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று हमारे சொன்னார், बीच में निवास करना அவர் है, तो எதிர்பார்க்கிறார் चाहता है ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை. एक पवित्र जीवन। பரிசுத்த வாழ்க்கை, पवित्र जीवन, பரிசுத்தம் இல்லாமல் पवित्र के बिना ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. कोई भी परमेश्वर को दर्शन नहीं कर ஆம் தேவனுடைய पाएंगे। பிள்ளைகளே, हाँ प्रभु के அவர் जनों, நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிற ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்க वो வேண்டும். हमारे अंदर निवास करना चाहिए, वो ज्ञान होना இந்த चाहिए। சரீரத்துல தான் इसी शरीर में என்னெல்லாமோ ஜனங்கள் பாவங்களை செய்கிறார்கள். बहुत सारे गंदे काम இந்த करते हैं, சரீரத்தை கெடுத்துக் इस கொள்ளுகிறார்கள். शरीर को बिगाड़ते हैं। தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளும் प्रभु की आराधना करने वाले சபைக்கு लोग, வருகிறவர்களும் कलीसिया में आने वाले இந்த लोग சரீரத்தை கெடுத்து இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டு एक இருக்கிறார்கள். शरीर को बिगाड़ कर जी रहे அவர்கள் हैं। மத்தியில उनके बीच में அவருடைய ஆலயமாகிய சரீரத்துல उनका जो मंदिर, जो शरीर அவர் है, ஒருபோதும் வாசம் பண்ண முடியாது. कभी नहीं ठहर सकते हैं। அவன் அவ உலா வேண்டும் என்று சொன்னார். अगर वो हमारे बीच में मंडराना है, நம்முடைய तो பாளையம் சுத்தமா இருக்க हमारी வேண்டும். छावनी सब शुद्ध रहना நம்முடைய चाहिए। சரீரம் ஆலயத்தில் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார். हमारा मंदिर जो अपने शरीर में रहना நமக்குள்ள அறிவு चाहिए, இருக்க வேண்டும். हमें से ज्ञान होना இது चाहिए। தேவனுடைய ஒரு ஆலயம் ये परमेश्वर का मंदिर என்று है। சொல்லி நம்ம ஞானம் இருக்கும் பொழுது ऐसा जब हमें ज्ञान கர்த்தர் இந்த रहेगा, மாசத்தை சொல்லுகிறார், तो मैंने कहता है கர்த்தர் ஆக்கினைகளை அகற்றி परमेश्वर तेरा दंड दूर சத்துருக்களை करके விலக்கினார். शत्रु को दूर किया। இஸ்ரவேல் ராஜாவின் நடுவில் இருக்கிறார். इस्राएल का परमेश्वर तेरे बीच में இனி है, தீங்கை காணாதிருப்பாய். से तू विपत्ति नहीं நீங்க भोगेगी। தீங்கை காண மாட்டீங்க. आप अभी विपत्ति नहीं ஏன் भोगेंगे, என்று சொன்னார், क्योंकि அவர் உங்கள் நடுவில் ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிக்க वो விரும்புகிறார். आपके बीच में निवास स्थान करना चाहता அது है। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, அவர் சீயோன் குமார்த்தியை கெம்பீரு பாடு என்று சொல்லுகிறார். कहता है कि ये सियोन की पुत्री तू मगन होकर गा, कहता கெம்பீரித்து है பாட வேண்டும். आनंद से गाना அது है। மாத்திரமல்ல, दूसरा है 2 பேர் 3 பேர் ஜெபிக்கும் பொழுது 2 या 3 जन प्रार्थना करते அவர் समय நடுவிலே இருந்து வாக்கு கொடுக்கிறார். उनके बीच में वो रहता है, அவர் நடுவில் இருக்கிறார். वो हमारे बीच में है। நம்முடைய வீட்டில் அவர் சோத்திரம் உலா வேண்டும் என்று சொன்னார். अगर वो हमारे बीच में मंडराना है, நம்முடைய பாளையம் சுத்தமா இருக்கணும். हमारी छावनी सब शुद्ध होना நமக்குள்ளே चाहिए। வாசம் பண்ண விரும்புகிறார். हमारे बीच में निवास होना அப்ப चाहता நமக்குள்ளாக है, तो हमारे ஒரு बीच உணவு இருக்கணும். एक महसूस இந்த होना சரீரம் चाहिए। ये शरीर जो தேவனுடைய है, ஆலயம், परमेश्वर का मंदिर இது है, பரிசுத்தமானது. ये पवित्र है। இது ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, अगर ऐसा अर्पण பரிசுத்தம் करोगे, அர்ப்பணிக்கும் பொழுது पवित्र के लिए अर्पण करोगे, இந்த மாச வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார். इसमें ना उसने प्रतिज्ञा दिया இனி है, நீங்க आपसे தீங்கை காணாதிருப்பீர்கள். विपत्ति नहीं भोगेंगे। உண்மையாகவே सच्चाई से இந்த மாசத்துல ये महीना தேவனுக்காக நீங்க அர்ப்பணித்து परमेश्वर के लिए आप अर्पण करोगे, பரிசுத்த வாழ் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது पवित्र से जिन्हें अर्पण எந்த करोगे, தீங்கு மூலை அணுகாது. कोई विपत्ति आपको नहीं छुएगी। நாம் செபிக்கலாம். कि हम प्रार्थना करें, நாம் செபிப்போம். हम प्रार्थना करें। எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता, உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना இந்த करते மாசத்துல हैं। इस महीने ஒரு நல்ல ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறேன். अच्छा प्रतिज्ञा आपने दिया கர்த்தர் है, ஆக்கினைகளை அகற்றி परमेश्वर तेरा दंड दूर உன் करके சத்துருக்களை விலக்கினார். तेरे शत्रु को दूर किया இஸ்ரவேல் है। ராஜாவாகிய கர்த்தர் इस्राएल का राजा உன் परमेश्वर நடுவில் இருக்கிறார். तुम्हारे बीच में இனி है। தீங்கை காணாதிருப்பாய். अब से कोई विपत्ति नहीं இந்த மாசம் அல்ல, ये महीना ही வருகிற नहीं, நாட்கள் முழுதுமாக आने वाले दिन में உடைய भी பிள்ளைகள் தீமையை காணக்கூடாது. आपके बच्चे कोई विपत्ति नहीं எல்லா भोगना தீமையை चाहिए। நன்மையாக மாற்றுங்க. सारी बुराई को भलाई में உடைய बदल கட்டளை दीजिए। கீழ்ப்படியத்தக்கதாக आपकी आज्ञा पालन करें, பரிசுத்தமாக வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுப்பதற்காக पवित्रता से जीवन बिताने के ஒவ்வொரு लिए ஞானத்தை கொடுக்கும்படியா நாங்கள் हर एक को செபிக்கிறோம். ज्ञान இதை दीजिए। பார்த்து கொண்டு இருக்கிற इसे देखने वाले, கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற सुनने वाले, ஒரு பிள்ளை ஆசீர்வதிப்பீராக. हर एक बच्चों को आशीष சத்துருவின் கிரிகள் அழிக்கப்படுவதாக, शत्रु को क्रिया को नाश செய்வின कीजिए। கட்டுகள் அடிக்கப்படுவதாக, सारे जादू टोना मिट வியாதி जाए, எல்லாம் மாறுவதாக, सारी बीमारी चंगे உன் हो, நலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானமும் तेरे शहरपनाह के बीच அரண்மனை शांति, சுகம் இருப்பான और சொல்வசத்தின்படியாக तेरे महल में सुख रहे, சமாதானம் சுகம் இணைந்திருக்கும்படியாக செபிக்கிறேன். शांति और सुख दोनों बना रहे। அந்த ஒரு எந்த தீங்கு பிள்ளைகளை தொடரக்கூடாது.
வரக்கூடாது. कोई बुराई उनको छू ना தேவ सके। பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். परमेश्वर की सुरक्षा रहे। ஆசீர்வதியும். आशीष எங்க தேசத்துக்காக हमारे ஜெபிக்கிறோம். देश के लिए प्रार्थना தேச करते எழுப்புதலை தாங்க. हैं। देश में बेदारी दीजिए। தலைவர் ரட்சிக்கப்படட்டும். नेता लोग उद्धार पाए। ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும். लोग उद्धार पाए। தேவ பாதுகாப்பு இருக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर को सुरक्षा रहे। தான மாவட்டத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ताना शहर के लिए प्रार्थना மகாராஷ்டிராவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना எழுப்புதலை करते கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். आप बेदारी को दीजिए। எங்களை தாழ்த்துகிறோம். अपने आप को हम झुकाते हैं। ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசுவின் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ये मेरे मन उसको पवित्र नाम को धन्य कर, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने के वो सारे उपकार को कभी ना भूलना. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தர் இயேசுவுடைய கிருபையும் हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, பிதாவின் தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा की सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ உலகத்தில் பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के सारे पवित्र लोग के என்றென்றைக்கும் साथ இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் சோதனை.